but it is God who enjoyed. मैंने ये नहीं पूछा क्या आपने इसमें आनंद किया, प्रभु इसमें आनंद करता है। Hallelujah. हालेलुया। And we rejoice in His presence. और हम जब उसकी उपस्थिति में आनंद करते हैं। All right. You know the scripture says in Psalm 105 भजन संहिता 105 में वचन कहता है that God bought the Israelites out of Egypt with silver and gold, and there was not one feeble person among the tribes. कि प्रभु ने इजराइलियों को मिस्र देश से जब बाहर निकाला, उनको सोने और चांदी के साथ बाहर निकाला और उनमें एक भी व्यक्ति बीमार नहीं था। He brought them out with silver and gold, and there was not one feeble person among the tribes. प्रभु ने उनको सोना और चांदी लेकर बाहर निकाला और उनमें उनके जितने भी लोग थे उनमें एक भी बीमार नहीं था। Now the Lord had told the Israelites to take one lamb out of the flock. और प्रभु ने बोला था कि एक जो मेमना है अपनी भेड़ों में से उसको एक को ले लो, They had to kill the lamb, कि उसको वध करो roast it with fire, और उसको आग में जलाओ, take the blood उसका जो लहू है वो लो and put it on the doorpost and on the lintel. और अपने दरवाजों के चौखट पे लगाओ। And they had to eat the roasted lamb inside the house. और जो पकाया हुआ मेमना है उसको घर के अंदर खाना है तुमको। Now saints, please listen to this carefully. Don't get disturbed. अब संतो बहुत गौर से इन चीजों को सुनो, अपने ध्यान को इधर उधर मत लगाओ। Now remember, the Israelites had toiled day and night for the Egyptians. और इजराइलियों ने मिस्र देश के लोगों के लिए रात और दिन रोए थे वो। They had done a back-breaking work day and night और वो कमर तोड़ मेहनत कर रहे थे दिन रात, because they had got onions and garlics from the ground. क्योंकि उनको जो प्याज और गार्लिक है वो जमीन से मिल रहा था। That means they had to. It was a back-breaking work. They had to bend and again stand. इसका मतलब इन Bend and चीजों को again लेने stand. के लिए उनको झुककर उठना पड़ रहा था। So their backs were hurting, तो उनके पीठ दर्द हो रहे थे, their spines were hurting, उनके कमर में भी दर्द था, their necks were hurting, गले में भी दर्द था, whole body was hurting. पूरे शरीर में उनके दर्द था। And due to malnutrition, और कम खाने की वजह से they had become very weak and lean. बहुत कमजोर हो गए थे वो, They were inflicted with sickness. और बीमारियों के साथ वो ग्रस्त थे। But the scripture says on that particular night, और वचन कहता है कि उस रात, that's the night that to be observed, the scripture says. और वचन कहता है कि उस रात को तुमको देखना है। On that particular night, उस रात में when they were partaking of the lamb, जब वो उस मेमने में से खा रहे थे, anybody who had blurriness in the eyes, कोई भी जिसकी धुंधली नजर थी, when they ate the eyes of the lamb, the blurriness just left immediately. और जब उन्होंने मेमने को खाया तो उनके जो धुंधलापन था वो चला गया। Anybody had deafness in the ears, they ate the ear and the ears were open. और जिनके कानों में जिनको सुनाई नहीं दे रहा था, जब उन्होंने उस मेमने को खाया तो उनके कान सुनने लगे। Anybody was dumb, they ate the tongue of the lamb and they started speaking. और जो गूंगे थे वो उस मेमने को खाने लगे और वो बोलने लगे। Grandpas who were 100 years old and their knees were very feeble, और जो दादाजी थे जो जिनके घुटने कमजोर थे, 100 साल की उम्र थी उनकी, their knees were strengthened उनके घुटनों में ताकत आई and they started chasing after grandmas. और वो दादी के पीछे भागने लगे। Hallelujah. हालेलुया। The scripture says he brought them out with silver and gold, and there was not one feeble among the tribes. और वचन कहता है कि उनको सोने और चांदी के साथ प्रभु ने बाहर निकाला और उनके जितने लोग थे उनमें एक भी बीमार नहीं था। Imagine that was only a type and shadow. और आप इस चीज को समझिए कि वो सिर्फ एक परछाई था। If the type and shadow could make the person whole, how much more the real Lamb of God? यदि नए नियम का जो परछाई है वो लोगों को चंगा कर सकता, तो मेमना जो परमेश्वर का है वो कितना ज्यादा हमको चंगा करेगा। How much more the real Lamb of God? जो सही परमेश्वर का मेमना है वो हमको कितना ज्यादा चंगा करेगा। For the scripture says he brought them out with silver and gold. क्योंकि वचन कहता है सोने और चांदी के साथ उसने उनको बाहर निकाला, And there was not one feeble person among the tribes. और उनमें एक भी व्यक्ति बीमार नहीं था। Now when we hold this bread in our hand, अब जब इस रोटी को हम अपने हाथ में पकड़ते हैं, it looks very simple. उसको देखने में साधारण लगता है। Then you will tell me, how is that it is so simple that it can take away any debilitating disease out of my body? ऐसा कैसा है कि इतनी साधारण वस्तु कोई इतनी जो बड़ी बीमारी है उसको निकाल सकती है मेरे शरीर से? Just by eating the simple bread, cancer can leave. साधारण रोटी को खाकर ऐसा कैसे होगा? Simple bread, eating of simple bread, the cancer can leave. साधारण रोटी को खाकर कैंसर कैसे जाएगा? Tuberculosis can leave. टीबी कैसे जाएगा? Every ailments can leave. हर एक दुख कैसे जाएगा?
Can a simple eating leave the sickness of your body? क्या एक साधारण चीज को खाने से आपके शरीर से बीमारी जा सकती है? If the simple eating could bring sickness into your body, simple eating can also leave the sickness from the body. यदि साधारण वस्तु को खाकर आप बीमार होते हो तो साधारण वस्तु को खाकर आप चंगे भी हो सकते हो। Hallelujah. हालेलुया। You know, the book, Luke chapter 24. लूका का 24। Jesus, when he rose again from the dead, यीशु जब मुर्दों से जी उठे, he appeared to Mary Magdalene. वो मेरी जो मरियम जो थी उसके सामने वो पहुंचे। And then the scripture says there were two of them who were going to the road to Emmaus. और दो लोग जो दो उसके शिष्य थे वो एमियस के रोड पर चल रहे थे। And they were talking among themselves what had happened. और वो उन चीजों के बारे में बात कर रहे थे जो हुई थी। And the scripture says when they were talking, Jesus himself drew near. और वचन कहता है कि जब वो लोग बात कर रहे थे तो यीशु उनके करीब गया। And then the Lord asked them, what are you talking? और प्रभु ने उनसे पूछा तुम क्या बात कर रहे हो? Then they tell the Lord, are you the only stranger in this land? You don't know what's happened? और वो लोग प्रभु से पूछते कि क्या तुम अकेले अजनबी हो इस जगह में? क्या तुमको नहीं पता कुछ दिनों में क्या हुआ है? So the Lord tells him what? क्या? तो प्रभु ने उनसे पूछा क्या हुआ? So they tells him Jesus of Nazareth was a prophet, mighty in word and deed. और उन्होंने कहा यीशु जो एक भविष्यवक्ता था वो बहुत अद्भुत कार्यों के साथ आया था, whom they crucified, जिसको उन लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया। and some of them among us, they went and they said that he is not there, he is risen from the dead. और हम में से कुछ लोगों ने जाकर देखा और उन्होंने कहा कि वो मुर्दों में से जी उठा है। And then the Lord tells them, O fools and slow of heart to और believe. प्रभु उनको बोलता है मूर्खों और बहुत धीरे से विश्वास करने वालों, Ought not Christ to rise again from the dead and enter his glory? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि मसीह जी उठकर अपनी महिमा में जाए? And the Bible declares right from the book of Moses till the last book, he expounded to them the scriptures concerning himself. और बाइबल कहती है कि मूसा की किताब से लेकर आखिरी जो किताब थी तब तक यीशु ने अपने बारे में उनको बताया। These people were going from Jerusalem to Emmaus, which was a 7 miles journey. और ये लोग यरूशलेम से जब जा रहे थे तो ये 7 मील की दूरी थी। So the Lord had a Bible study with both of them right from the book of Genesis to the book of Malachi. और प्रभु ने उन लोगों के साथ बाइबल स्टडी किया उत्पत्ति से मलाकी तक। He was revealing himself to both of them concerning himself in the scriptures. और वो खुद के बारे में उनको बता रहा था वचन से, वचन के द्वारा। And the Bible declared they reached the destination. और जब वो अपने जगह पर पहुंचे, And when they reached the destination, और वो वहां पर पहुंचे, they constrained him. रुकना हमारे साथ में रहना. और उन्होंने उससे कहा कि हमारे साथ रह जाओ। And the word declares it was evening, it was night. और वचन कहता है कि शाम हो गई थी। And then he broke the bread. और फिर उसने उस रोटी को तोड़ा। Saints, after the resurrection also the first thing that Jesus did was breaking the bread. और संतो पुनरुत्थान के बाद में पहली चीज जो यीशु ने की उसको रोटी को तोड़ा। And he vanished out of the sight. और वो उनके सामने से गायब हो गया। And they said to one another, didn't our heart burn within us when he opened to us the scriptures? और उन्होंने एक दूसरे से क्या हमारा दिल हमारे भीतर जल नहीं रहा था जब वो हमसे उस वचन के बारे में बात कर रहा था। You know, I used to always think that these two people who went to the Emmaus road both were men. और मैं सोचता था कि ये जो दो लोग थे शिष्य जो थे वो दोनों पुरुष थे। No. नहीं, Actually, only one man's name is mentioned, which is Cleophas. और उन दोनों में से सिर्फ एक का नाम वहां पर बताया गया है, क्लियोफस। The other was a female. और वो दूसरे जो है वो स्त्री थी। You'll tell me, how do you know? और तुम कहोगे कैसे तुमको पता? Luke chapter 24 verse 32. Just somebody read verse 32. और लूका का 24 और 32 कोई पढ़िए। Somebody from the King James or the New King James? It says, didn't read. Look at the scriptures, please. This is very so powerful. और इस वचन को अपने बाइबल में देखकर पढ़िए। Luke 24 verse 32. लूका का 24 उसका 32। What does it say? 24, 32, 32 verse 32. And they said to one another, did not our heart burn within us? Did not our hearts? Now, if there are two people, there has to be hearts, not heart. H-E-A-R-T. और वहां पर दो लोग ये कह रहे हैं कि क्या हमारा दिल हमारे भीतर जला नहीं? If it is two hearts, that means there are two people who can be male, female. और दो लोग अगर है तो Yeah, it says that didn't a heart, H-E-A-R-T, not hearts. और उन्होंने ऐसा कहा कि क्या हमारा दिल, और खुद के दिल के बारे में वो बात कर रहे थे।
The scripture says when God joined man and women, they became one. और वचन कहता है जब प्रभु ने स्त्री और पुरुष को जोड़ा तो वो एक हो गए. You can imagine, Jesus didn't find it necessary to reveal himself to Peter, James and John when he rose again from the dead. और प्रभु ने ऐसा जरूरी नहीं समझा कि पतरस और जो बाकी शिष्य थे उनको अपनी पहचान बताए. He revealed himself to a man and a woman, a husband and a wife. और उसने अपने आप को एक दूसरे लोगों को जो पति पत्नी थे उनको बताया. Because it was through a husband and wife man lost badly. क्योंकि एक पति पत्नी के द्वारा मनुष्य ने उद्धार को खोया था. So the scripture says in the book of Genesis that when they ate, their eyes were opened. और उस किताब में लिखा है कि जब उन लोगों ने खाया तो उनकी आंखें खुल गई. Their eyes were opened and they found themselves naked. और उत्पत्ति में जब उन्होंने खाया तो जब उनकी आंखें खुली उन्होंने देखा कि उनके कपड़े नहीं हैं. Eating the fruit opened their eyes to themselves. और जब उन्होंने उस फल को खाया तो उनकी आंखें खुद की तरफ खुल गई. But when these two people, when they ate the bread, their eyes were opened not to themselves, but their eyes were opened to the Lord. लेकिन जब इन शिष्यों ने उस रोटी को खाया तो उनकी आंखें यीशु की तरफ खुल गई. Because the scripture says, and they knew him, not themselves, they knew him. और वचन कहता है कि जब उन्होंने उसको खाया तो वो उसको जानने लगे. Saints, especially couples over here, when you break bread, Jesus will make himself known unto you. और जब आप रोटी तोड़ते हो तो यीशु अपने आप को आपको प्रकट करेगा. That's why every day make it a point that you partake as husband and wife. When you partake in the Lord's Supper, Christ himself will reveal himself to you. और पति पत्नी भी जो है जब आप हर रोज इस रोटी में भाग लेते हो तो यीशु अपने आप को आपको प्रकट करेगा. Now the Bible declares immediately they left the place. Now first of all they had walked for 3 hours. Now to come back, it's not that easy. और 3 घंटे तक वो चल के आए और वचन कहता है कि जब उन्होंने उनकी आंखें खुली तो अचानक से उस जगह को छोड़ के चले गए. How, from where did they get their strength? और कहां से उनमें सामर्थ आया? When they partook in the bread. जब उन्होंने उस रोटी में भाग लिया. The moment they partook in the bread, their bodies were rejuvenated, they came back. और जब उन्होंने उस रोटी में भाग लिया तो उनके शरीरों में ताकत आई और वो फिर से चले गए. And the scripture says they came and told the disciple that he was made known unto us in the breaking of bread. और उन्होंने वचन दिखाता है कि शिष्यों से जाके कहा कि जब हम रोटी तोड़ रहे थे तब उसने अपने आप को प्रकट किया. Hallelujah. हालेलुया. Christ will make himself known unto us in the breaking of bread. मसीह अपने आप को रोटी को तोड़ने के द्वारा भी प्रकाश करता है. The scripture says we proclaim the Lord's death, not his resurrection till he comes. और वचन कहता है कि यीशु की मृत्यु को हम घोषित करते हैं उसके आने तक. In the book of Acts, the scripture says they went from house to house daily breaking bread. और प्रेषितों की किताब में लिखा है कि हर रोज वो घरों में जाकर रोटी को तोड़ रहे थे. When Paul had gone, if you read the book of Acts chapter 20, 6 and 7, verse 6 and 7, Paul had gone to minister to a place. और पौलुस प्रेषितों में हम देखते हैं कि एक जगह पर जाता है सेवकाई करने के लिए. Now, can you imagine Paul coming to the city of Pune? Who will not go, you tell me? और अगर पौलुस पुणे शहर में आया तो कौन नहीं जाएगा उससे मिलने. But you know what the scripture says? When the people gathered together, the disciple, they came for breaking of bread. और वचन कहता है कि जब वो लोग साथ में मिलकर आए तो उन्होंने रोटियों को तोड़ा. Every day, they from house to house, they were going breaking the bread. और घर से घर वो जा रहे थे हर रोज रोटी को तोड़ते हुए. Hallelujah. हालेलुया. Saint, we have got so many of testimonies that I have heard when people broke bread in their house, they were healed of terminal sickness. और संतों मैंने बहुत सारी गवाहियां सुनी है कि जब लोगों ने रोटी को तोड़ा अपने घर में तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारी भी चंगा हो गई. If sickness came through eating, sickness will also go through eating. यदि खाने के द्वारा बीमारी आई तो खाने के द्वारा बीमारी जाएगी भी. Hallelujah. हालेलुया. Now the Bible declares that Jesus broke and gave. और वचन कहता है कि यीशु ने रोटी को तोड़ा और दिया. Now when you are holding these elements in your hands, जब इन चीजों को आप अपने हाथ में पकड़ रहे हो, you got to consider that this has been given to you by Jesus right now, at this very moment. और आपको ऐसा देखना है कि यीशु ने इस समय आपको ये दिया है. Do it in remembrance of me. That means the Lord is telling, enact it, as if it happened just 2 minutes ago. और यीशु ने कहा कि इसको ऐसा याद करो जैसे अभी 2 मिनट पहले ये हुआ है. Fresh. ताजा. The book of Revelation says that it was the lamb that it had just been slain. और वचन कहता है कि जो मेमना है उसको अभी मारा गया था. We discern the Lord's body. This is his body. He said, take, eat. This is my body which is broken for you. और यीशु ने कहा कि इसको लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया. This is my body which is broken for you. ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया. Since people have lots of diets, changing their diets, exercising and all, that's okay, that's fine.
और लोग अलग अलग डाइट करते जो जो ठीक भी है, but still creation is still fallen. लेकिन फिर भी इस ये जो संसार है ये गिरा हुआ है। All the things that we eat are still fallen. ये जो भी चीजें हम खा रही है इस गिरे हुए संसार से है। You need somebody who is not fallen, and that is the Lamb of God. और आपको ऐसे किसी की जरूरत है जो गिरा नहीं है, वो परमेश्वर का मेमना है। His body was never fallen. उसका शरीर कभी गिरा नहीं। So when we partake in the Lord's body, तो जब हम उसके शरीर में भाग लेते you हैं are partaking in His body, and you will be healed. और उसके शरीर में हम भाग ले रहे हैं और हम चंगे हो जाएंगे। You know, sickness is supernatural, आप जो बीमारी है वो नैसर्गिक नहीं है, and we are eating natural thing to overcome the और supernatural. नैसर्गिक चीजों को खाकर हम अलौकिक चीजों को चंगा करने की You कोशिश कर need रहे हैं। supernatural to overcome the supernatural, और आप अलौकिक चीजें खाओ तो अलौकिक चीजें पे जय पाओगे। and that supernatural is the body of the Lord Jesus Christ. और ये अलौकिक चीज जो है ये यीशु मसीह का शरीर है। Hallelujah. हालेलुया। This is the body that was broken for us, और ये उसका शरीर है जो हमारे लिए टूटा गया था, and this is the blood that was shed for us. और ये उसका लहू है जो हमारे लिए बहाया गया We था। can discern between the body and the blood. और हमको इस लहू और शरीर में के बारे में समझना है, Partake in the Lord's Supper. इसमें भाग लेंगे। Amen. Thank you, Lord. आमीन। Thank you, Jesus. Thank you. थैंक यू जीसस। क्या आप सब खुश हैं? यस। सो आप आज और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। यस, हर रविवार आप ऑलरेडी सुंदर लगते हैं, बट आज कुछ अलग ही। हालेलुया। सो किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है आज कुछ तो अलग है। कोई बताएगा क्या है आज? यस, चर्च की सालगिरह, राइट, एनिवर्सरी। जैसे कि एज पर अगर बोलेंगे तो कि चर्च की स्थापना हुए हुए आज 5वां साल है, बट अगर वैसे बात करी जाए तो प्रभु ने ये कार्य ऑलमोस्ट 9 साल पहले चालू कर दिया था। सो जो फेलोशिप चलता था, जो संगति में जो सब साथ में रहते थे, बाइबल स्टडी जो चलता था, वो ऑलमोस्ट उसको 9 साल हो चुके हैं। 12 साल? ओह, ये अभी और चीज़ें पता चल रही है। सो इन टोटल 12 साल हो चुके हैं, है ना। सो सारा महिमा, सारा आदर, सब कुछ किसको जाता है? यीशु को जाता है। सो एक जोरदार तालियों के साथ हम यीशु को धन्यवाद करें, क्योंकि उन्होंने ही ये किया है। हालेलुया। यस। सो ओके, सो जल्दी से आपको बेसिक अनाउंसमेंट्स किया जाए। सो आज आप सभी के लिए भरपूर खाना है, लंच है आज चर्च की तरफ से। सो आराम से वेट करिए, थोड़ा लंबा, अगर ज़्यादा नहीं होगा लंबा, है ना, थोड़ा सा लंबा हुआ तो कोई बात नहीं, घर पे जाके खाना बनाने का टेंशन नहीं है। सो आप आराम से यहाँ लंच करके जाइए। हालेलुया। यस, ओके, थैंक यू जीसस। जो पीछे बैठे हैं बच्चे और बड़ों के अलावा आप आगे आ जाइए, थोड़ा चेयर्स ऑक्यूपाई कर लीजिए। जो ऑक्यूपाई करेगा उसे खाना जल्दी मिलेगा, है ना, नहीं तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। यस, ओके। सो बेसिक अनाउंसमेंट्स, जैसे कि आपको पता है नेक्स्ट महीना, अगले महीना का पहला शनिवार, राइट, दैट इज़ नवंबर 2nd सैटरडे, है ना, 2nd नवंबर। सो 2 नवंबर को मेंस मीटिंग रहेगा, है ना। सो आपको वापस से सूचना दी जाएगी, बट तैयार रहिए। मेंस ब्रदर्स, है ना, मेंस का मतलब सिर्फ शादीशुदा नहीं, जो भी ब्रदर्स हैं हमारे, सब आप सभी इनवाइटेड हैं फेलोशिप के लिए। सो बाइबल स्टडी रहेगा और उसकी डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीक और डिटेल में दे दिया जाएगा। हालेलुया। यस, इसके अलावा लेडीज़ मीटिंग आज होने वाला था, बट क्योंकि हम सब और यहाँ पे इतनी सब सुंदर लेडीज़ पूरा सच के आए हैं, सो इसलिए आपको थोड़ा ब्रेक दिया गया है। सो इसलिए आज संडे को हम लोग लेडीज़ मीटिंग नहीं रख रहे, पर अगले रविवार पक्का हम लेडीज़ मीटिंग रखने वाले हैं। सो अगले रविवार इज़ 13th, नहीं 20th, सॉरी, है ना, 20 अक्टूबर। सो 20 अक्टूबर को लेडीज़ मीटिंग रहेगा शाम को 6 बजे। हालेलुया। खुश हैं आप? बच गए आज, है ना, खा खुआ के मस्त सोएंगे। हालेलुया। ओके,
सो यस, जैसे कि आपको पता है कि ये मीटिंग आज रिकॉर्ड करी जा रही है, जो भी वचन भी बांटा जाएगा ये रिकॉर्डिंग हमारे जो यूट्यूब चैनल है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ के नाम से, उस पर अपलोड किया जाएगा. सो आप ये वीडियोस वापस देख सकते हैं. सारी संडेज़ की वीडियोस अपलोड होती है एंड आप ये रिकॉर्डिंग्स दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं. हालेलुया. यस, कोई आज फर्स्ट टाइम आया है, पहली बार आया है? ओके, सब हमारे ही लोग हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. सो यस, इसके अलावा आपको जैसे कि पता ही है जो हमारा चैनल रहता है वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे अवेलेबल है. सो आप देख सकते हैं. और यूट्यूब चैनल को आई थिंक सबने सब्सक्राइब कर रखा है. यस, हम सब्सक्राइबर्स बढ़ा नहीं रहे बट वचन बढ़ाना चाहते हैं. हालेलुया. यस, सो आज आप रेडी हैं वचन के लिए? और साथ ही क्या आप कुछ फोटोज देखना चाहते हैं 8-9 साल पुरानी? मजे आते हैं हमें, राइट? एल्बम्स देखने को, पुरानी मेमोरीज देखने को. यस, सो आज वो भी आपके साथ बांटा जाएगा. सो उसके लिए प्रोजेक्टर का बंदोबस्त किया गया है. सो इसीलिए वापस मैं बोल रही हूँ, जो भी पीछे बैठा है और आगे आ सकता है प्लीज़ आगे आ जाइए. चेयर्स है, हमारे ब्रदर्स, हमारे वॉलंटियर्स और चेयर्स भी लगा देंगे. वॉलंटियर्स प्लीज़ गो अहेड. और पीछे बहुत गर्मी भी है, सो इसलिए मैं अगेन इनकरेज कर रही हूँ, आगे आके शिफ्ट हो जाइए. ओके, सो क्या आप तैयार हैं आज के वचन के लिए? यस, सो वचन के लिए हम इनवाइट करना चाहते हैं हमारे पास्टर जी गणेश अंकल, और ट्रांसलेशन के लिए पास्टर जी के बेटे मनोज ब्रदर. सो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए. हालेलुया. Hallelujah. कितना लोग खुश है आज? How many of you are happy today? हालेलुया. आमीन. हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं, हमको खुश रहना ही है. We don't have another option. We have to be happy. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में है. Because we are in the kingdom of God. हालेलुया. Hallelujah. और परमेश्वर के राज्य में हर समय खुशी रहती है. And in the kingdom of God, there's always joy. हालेलुया. Hallelujah. ऐसा आनंद है जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है. It's a joy that is inexpressible and full of glory. हालेलुया. Hallelujah. ये स्वर्ग का आनंद है भाई बहनों. And this is a heavenly joy. हालेलुया. Hallelujah. और प्रभु चाहता है कि हम सब हमेशा आनंदित रहे. And the Lord wants that all of us should always be rejoicing. जो अपने परमेश्वर को जो जानता है, जिसका उसके साथ एकदम गहरा रिश्ता है, वो व्यक्ति हर समय आनंदित रहेगा. And the one who knows his God will always have joy. हालेलुया. Hallelujah. आमीन. हालेलुया. Hallelujah. आमीन. तो हमारा परमेश्वर बहुत हमसे प्रेम करता है. So our God loves us a lot. हालेलुया. Hallelujah. 5 सालों से प्रभु ने ये कलसिया को अभी तक संभाला है. From the last 5 years, God is taking care of this church. एक छोटा सा बाइबल स्टडी से हम लोगों ने स्टार्ट किया था. And we started off with a small Bible study. और प्रभु ने ये देखो आज कितना बड़ा कलसिया बनाया. And the Lord is making it a big church. और यहाँ से ये कलसिया किसी मनुष्य का महिमा नहीं करता, ये कलसिया सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का महिमा करता है. And this church is not glorifying any man, it's glorifying the Lord Jesus. और यहाँ पर आने वाला कोई व्यक्ति को नहीं जानता, यहाँ पर आने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जानता है. And people are not knowing just each other, but everyone here is knowing the Lord. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि प्रचारक को जानेंगे, पास्टरों को जानेंगे तो आपका जीवन बदलेगा नहीं, लेकिन यीशु को जानेंगे आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा. By knowing preachers, by knowing men of God, your life will not change. But if you know Jesus, your life will change तो forever. यहाँ पर हमको प्रभु लाता है उसको जानने के लिए. So the Lord brings us here to know Him. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि उसको जानना ही अनंत काल का जीवन है. Because eternal life is knowing Him. हालेलुया. Hallelujah. आज का विषय है सहभागिता. So today we are going to discuss on fellowship. सहभागिता, 2 सहभागिता है. There are 2 types of fellowship. और ये बहुत महत्वपूर्ण सहभागिता है. And it's very important. पहला सहभागिता The first kind of fellowship, जो है वो हर एक जो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है, that every born again person, उस व्यक्ति का सहभागिता उसके पिता परमेश्वर के साथ होना जरूरी that है. every born again child should have a fellowship with the Father. दूसरा सहभागिता, The second type of fellowship, वो कलसिया के साथ होना बहुत जरूरी है. it is the fellowship that we have with the church. हालेलुया. Hallelujah. इन दोनों में से अगर कोई भी सहभागिता आपका नहीं है तो कुछ गड़बड़ है. If you are missing either one of these fellowships, then there is something wrong. हालेलुया. Hallelujah.
बहुत लोग बोलेंगे यार मेरा तो प्रभु के साथ सहभागिता है, मेरे को दूसरा सहभागिता का जरूरत नहीं. You know, some may say, I have my relationship with God, so I don't need this relationship with people. ऐसा गलत है ये. And this is wrong. हालेलुया. Hallelujah. अगर हमारा प्रभु के साथ सहभागिता है, If we have a relationship, a fellowship with the Lord, तुम्हारा मन चाहेगा कि कलीसिया के साथ भी सहभागिता करूं. then your desire will cause you to fellowship with the people of God. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि दोनों सहभागिता बहुत जरूरी है. Because both of these kinds of fellowship is very important. क्योंकि पहला सहभागिता अगर आपका प्रभु के साथ है तो आपका अंदर का मनुष्य बलवान बनेगा. Because if you have a strong fellowship with the Lord, your inner man will grow strong. हालेलुया. Hallelujah. सहभागिता का मतलब ये नहीं कि सुबह 4 बजे उठा, मैं 2 घंटा बाइबल पढ़ा, 2 घंटा प्रभु की 2 गीत गाया, हो गया मेरा सहभागिता. And a fellowship is not like a regimen that I wake up at 4 o'clock and for 2 hours I'm doing certain things. उससे कुछ नहीं होगा. There's not a lot of benefit to that. सहभागिता आत्मा के द्वारा और वो चाहत के द्वारा होना चाहिए. And the fellowship, the true fellowship with the Father is through His Spirit, through desire to know Him. जैसा एक लड़का लड़की जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उनको क्या चाहत उनको मिलाता है. As when a couple fall in love with each other, how they have desires. हालेलुया. Hallelujah. व्यवस्था नहीं पाल रहे हो, 2 घंटा में मिलेगा बस, उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं, मैं बाद में जाएगा, ऐसा नहीं रहता है. And they don't meet each other with protocol saying, I'll meet you for 2 hours, after that I have another. लेकिन वो other कहां पर भी रहेंगे तो वो ये देखते हैं कभी जाके मिलूं, कभी जाके मिलूं, कभी जाके मिलूं. And regardless of where they are, they always strive to be with each other. हालेलुया. Hallelujah. ऐसा ही पिता परमेश्वर के साथ हमारा सहभागिता होना And जरूरी in है. this fashion, our relationship, our fellowship should be with the Father. हालेलुया. Hallelujah. कि मैं पिता के पास बैठूंगा और उसकी आवाज को सुनूंगा That I want to sit with the Father and hear His voice. और मैं उसके साथ बैठकर उसकी स्तुति करूंगा, उसकी महिमा करूंगा. I want to be with Him and worship Him and praise Him. हालेलुया. Hallelujah. ऐसा सहभागिता का आदत अगर हमने है ना डेवलप किया या उत्पन्न किया हमारे अंदर, इसको बनाया, And if we develop such a fellowship, a habit of having such a fellowship with the Lord, तुम्हारा मन करेगा कि कलीसिया के साथ भी आकर मैं वो शेयर करूं. then you will have a desire to come to the church and share it with everyone else. हालेलुया. Hallelujah. दोनों सहभागिता बहुत बहुत जरूरी है. Both kinds of fellowship is very important. अगर ये 2 सहभागिता आपका है तो आप कभी भी ठोकर नहीं खाओगे. If you have both of these fellowships set, then you will never stumble. आप अंत तक प्रभु में टिके रहोगे. You will endure in the Lord till the end. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि ये सहभागिता जो कलीसिया के साथ होता है, Because when this fellowship is taking place with the church, एक वचन हम देखते हैं भजन संहिता का 133वां अध्याय. we'll go to Psalms 133. हमारे पास समय थोड़ा है, थोड़े ही इसमें निपटाएंगे. We have little time, so we'll wind up quickly. यहां पर लिखा है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे. And the word says, verse? Yeah, praise ye. Hold on. 133 Psalms 133 133. verse 1. Thank you, Lord. The word says, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. वचन कह रहा है, देखो The word of God is saying, behold, see. ये कैसी भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल के रहे. How good and how pleasant a thing it is when brothers dwell together. हालेलुया. Hallelujah. अगर हमारा रिश्ता प्रभु के साथ सही है तो हमको भाइयों से मिला रहना अच्छा लगेगा. If we have a good fellowship, a good relationship with the Father, then we will have desire to meet our brethren. हालेलुया. Hallelujah. और ये परमेश्वर के नजर में बहुत अच्छी बात है, ऐसा लिखा And है. it is a very good thing in the eyes of the Lord. हालेलुया. Hallelujah. कितनी भली और मनोहर बात है ये. It is such a pleasant and good thing. आगे लिखा है, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो आरोन के सिर पर डाला गया था. And ahead it says, it is like the precious oil upon the head. और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया. It is like the precious oil upon the head running down on the beard of Aaron. हालेलुया. Hallelujah. कलीसिया के साथ जब आप सहभागिता करते हो When you fellowship with the church,
तो यहाँ पर कॉर्पोरेट अभिषेक आता है परमेश्वर का, So there is a corporate anointing that comes in this place. क्योंकि सभी अभिषिक्त लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। Because all anointed people are in one place. हालेलुया। Hallelujah. सो ये कॉर्पोरेट, ये पूरा अभिषेक मिलकर बहने लगता है And, कलसिया and, के ऊपर। and we see all of the anointing synchronizing and flowing together. हालेलुया। Hallelujah. कलसिया का सिर जो यीशु मसीह है, वहां से वो अभिषेक बहने लगता है। And the head of the church, who is Christ Jesus, from him that anointing starts flowing. ये वो कीमती तेल के समान है जो आरोन के सिर पर डाला गया था। And this is like that precious oil of anointing which was poured on the head of Aaron. हालेलुया। Hallelujah. है ना, वो तेल जो अभिषेक का तेल उसके सिर पर उंडेला और उसके सिर पे से वो दाढ़ी पे और दाढ़ी से उसके वस्त्र के छोर तक बहने लगा। And that anointing oil which was poured upon his head, it started to flow to his beard and from his beard to the edge of his garment. हालेलुया। Hallelujah. ये अभिषेक बहुत जरूरी है हम सबके जीवन में। And this anointing is very important in each one of our lives. हालेलुया। ये Hallelujah. अभिषेक हमको हर बुराई से बचाएगा, And this anointing saves us from every evil. हमको परिपूर्ण करेगा। And it perfects us. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि बिना अभिषेक के हम परमेश्वर की बातों को नहीं जान पाएंगे। Because without this anointing we cannot know the things of God. ये अभिषेक जो है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है। And this anointing is the anointing of the Holy Spirit. हालेलुया। Hallelujah. है ना, वस्त्र सिर से वो बहता है, बहते बहते पूरा है ना छोर तक जाता है। And this anointing, the oil starts flowing from your head to the beard to the entire clothes. मतलब जितना आप सहभागिता में आते जाओगे परमेश्वर का अभिषेक आपके सिर में से आपके पूरे जीवन के ऊपर आने लगेगा। This means the more you come to the fellowship, the presence of God, this anointing will start flowing from your head and it will start engulfing everything in your life. ये अभिषेक तुम्हारे जीवन के हर एक क्षेत्र तक जाएगा। And this anointing will reach every aspects of your life. हालेलुया। Hallelujah. आपके पूरा जीवन को ये परिपूर्ण करेगा। It will transform, it will complete your entire life. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए ये मिलना बहुत जरूरी है। And that is why it is important to have this. और ये भी अपने आप से होने लगता है जब तुम्हारा पहला सहभागिता सही है प्रभु के साथ। And this happens automatically when your relationship, when your fellowship with the Lord is right. हालेलुया। Hallelujah. एक और बात यहाँ पर देखने के लिए है कि आरोन की दाढ़ी के ऊपर भी आया वो। And there's one more thing to note here, that this oil of anointing also came on Aaron's beard. हालेलुया। Hallelujah. बच्चे को दाढ़ी नहीं आती है, प्रौढ़ व्यक्ति को दाढ़ी आती है। Children don't get beard. Only grown men, they get beard. When you're matured, you have beard. जो व्यक्ति का प्रभु के साथ सहभागिता है और वो कलसिया के साथ सहभागिता है, वो प्रभु में प्रौढ़ बनने लगता है। And a man and a person who has a right relationship with the Lord and he has a fellowship with the church, he is a mature person. हालेलुया। Hallelujah. है ना, दाढ़ी तक आता है, मतलब उसको प्रभु में बढ़ने लगता है वो। And this anointing flows to his beard, which means he's growing in the Lord. हालेलुया। Hallelujah. उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, अरे बच्चे तू अपने दुश्मनों से प्रेम कर, अपने आप प्रेम करने लगता है। And you don't need to teach him that, oh child, love your enemy. He learns to love his enemy automatically. हालेलुया। Hallelujah. तो अभिषेक उसको सब बातें सिखाता है। And then anointing teaches him all things. और उसकी आदतें बदलने लगती है। And his habits start changing. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर के पुत्र के समान वो चलने लगता है। And he begins to walk like a son of God. हालेलुया। Hallelujah. ये अभिषेक हमारे जीवन को बदलने के लिए है। And this anointing is here to transform our lives. हालेलुया। Hallelujah. हमको मसीह के स्वरूप में लाने के लिए अभिषेक का काम आता And है। this anointing is used to form us in the image of Christ. हालेलुया। Hallelujah. इस अभिषेक में परमेश्वर का राज्य है। And the kingdom of God dwells in this anointing. हालेलुया। Hallelujah. इस अभिषेक के अंदर दुष्ट आ नहीं सकता है। And the evil one cannot enter into this anointing. हालेलुया। Hallelujah. शैतान आपको पकड़ेगा, फिसल जाएगा। And if the devil catches you, you'll slip out of his hands. क्योंकि तेल से मला हुआ व्यक्ति को कोई पकड़ सकता है क्या? Because you're fully drenched with the oil. हालेलुया। Hallelujah. शैतान के चंगुल में तुम आ नहीं पाओगे। And you will not be entrapped by the devil. क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे जीवन में बह रहा Because the है। anointing of the Holy Spirit flows in your life. हालेलुया। Hallelujah. पाप तुमको पकड़ नहीं पाएगी। Sin cannot hold you. दुनिया की बुराई तुमको पकड़ नहीं पाएगी। The wicked things of this world will not be able to लेकिन hold you. प्रभु की बातें तुमको पकड़ के उसमें तुम बढ़ने लगोगे। And the things of the Lord will hold you and you will begin to grow in Him. हालेलुया। Hallelujah. तो ये दो सहभागिता बहुत So महत्वपूर्ण these है। two kinds of fellowship is very important. एक और हम वचन देखते हैं। We'll go to one more verse. पहला कुरिन्थियों का, 1 Corinthians. थैंक यू लॉर्ड। Thank you, Jesus. पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय 1 Corinthians chapter 1. और
चौथे वचन से पढ़ते हैं। from verse 4 onwards. मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह में हुआ है। I thank my God always concerning you for the grace of God which was given to you by Christ Jesus. कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। That you were enriched in everything by Him, in all utterance and all knowledge. है ना, ये जो कलसिया है कुरिन्थियों की, वो वहां पर है ना पवित्र आत्मा से भरा हुआ कलसिया था, है ना, पवित्र आत्मा के वरदानों में चलने वाला कलसिया And था। this church which was in Corinth was full of the gifts of the Holy Spirit, and they were walking in the power of God. हालेलुया। Hallelujah. तो उनको पौलुस कह रहा है 10वां वचन में, In verse 10, Paul is talking to them. हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं। He's saying, now I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, that you all speak the same thing and that there be no divisions among you, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। but that you be joined perfectly together in the same mind and in the same judgment. हालेलुया। यह Hallelujah. अभिषेक जब प्रभु का आता है तो हमको एकता में लेकर आता है। And when this anointing of the Lord comes, it brings us in unity, एक ही मन होना चाहिए, with one mind, एक ही मत होना चाहिए, with one judgment, एक ही विश्वास होना चाहिए, with one faith, क्योंकि एक ही हमारा पिता परमेश्वर है, because we have one Father एक ही हमारा प्रभु परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। and we have one Lord who is Jesus. हालेलुया। Hallelujah. 12वें वचन में वो कह रहा है, मेरा यह कहना है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलुस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है। And verse 12 he says, now this I say, that each one of you says, I am of Paul, I am of Apollos, I am of Cephas, and I am of Christ. हालेलुया। Hallelujah. ये कलसिया में क्या था? विभाजन था। And there was division in this church. और वो बोल रहे थे, अरे मैं तो पौलुस का है, क्या प्रचार करता है यार, क्या अनॉइंटिंग है। And he says, I belong to Paul, and what anointing Paul has. ये दूसरा भाई उतना भारी प्रचार नहीं करता, And this other guy doesn't preach as good, वो करता है बहुत अच्छा है। but he preaches very well. ऐसा विभाजन वाला ऐसा सोच अगर हमारा है तो ये गलत है। And if we have this kind of thinking, then it's wrong. ऐसा सोचकर अगर तुम आ रहे हो आज ये बात करेगा तो तुम्हारा जीवन कभी बदलेगा नहीं। And if you think, if you come with this mindset and you know, come for this person who's preaching, तुम ये मनसा से आना चाहिए, पिता आज मैं तेरे से मिलने के लिए आ रहा हूं, तू मुझसे बात कर। our mindset should be, Lord, I'm coming to meet you and you speak to me. यहां पर फिर कोई भी खड़ा हो, प्रभु आपसे जरूर बात करेगा। And regardless of who's standing here, the Lord will definitely speak to you. हालेलुया। Hallelujah. ऐसे अपने आप को तैयार करके आओ। And prepare yourself this way when you come here. हालेलुया। Hallelujah. अरे ये फेवरेट है मेरा, ये अच्छा प्रचार करता, अच्छा समझता, लेकिन तुम्हारा जीवन बदलेगा नहीं। And you might have a favorite and say, this person when he teaches I understand, but this understanding will not change your life. लेकिन जब तुम ये तैयारी करके आओगे, प्रभु मैं तुझसे सुनना चाहता हूं, तू आज मुझसे क्या कहना चाहता है, But when you prepare your heart, the Lord, I'm coming to hear what you have to say to me, तभी तुम्हारा जीवन सचमुच बदलेगा। then your life will be really changed. फिर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर हो, एक शब्द तुम्हारे को छू लेगा और तुम्हारा जिंदगी बदल And regardless जाएगा। of who's standing here, that word will touch you and change your life. हालेलुया। Hallelujah. मैं ऐसा ही तैयारी करके आता भाई बहनों। I just prepare like this and come. यहाँ पर कोई भी भाई खड़ा होता है, प्रभु मुझसे जरूर बात करता है। When I come here, regardless of who's standing, the Lord speaks to me. हालेलुया। Hallelujah. फिर वो डेलोन ब्रदर हो, It can be Delon bro. अमीश हो, It can be Amish. क्लिफर्ड ब्रदर It can हो, be Clifford bro. मनोज हो, It can be Manoj. या कोई भी आशीष हो, कोई भी ब्रदर यहाँ से बात करता है। It can be Ashish or anyone speaking from पवित्र here. आत्मा मुझसे बात करता है। Holy Spirit speaks to me. हालेलुया। Hallelujah. कितने अच्छे अच्छे रहस्यों को बताता है प्रभु, There are so amazing revelations that come और वो here, हमारे जीवन को बदलता है। and it is changing our lives. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु ने इन लोगों के द्वारा मेरे जीवन को बहुत असर किया And the है। Lord has really impacted my life through them. हालेलुया। Hallelujah. ऐसे ही तैयारी से आप लोग आना है भाई बहन। And you should come with such prepared heart. तब पवित्र आत्मा वचन को लेकर तुम्हारे अंदर ऐसा काम करेगा, तुम्हारा जीवन बदलता And that is when रहेगा। the Holy Spirit will be able to take the word and make it alive in your life. हालेलुया। Hallelujah. ये कलसिया के जैसे तुम बोलोगे नहीं, मैं पौलुस का हूं, मैं अपोलुस का हूं, मैं कैफा का हूं, ऐसा नहीं बोलोगे। And if you say, you should not be saying like this, like how this church was saying, I'm of Paul, I'm of Apollos, I'm of Cephas. हालेलुया। Hallelujah. पौलुस उनको डांट रहा है Paul is rebuking them. और बोल रहा है, कोई कहता है कि मैं मसीह का हूं, And someone is saying, I'm of Christ. और क्या आगे वो पूछ रहा है, क्या मसीह बटा गया है? And he's asking,
Is Christ divided? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? Was Paul crucified for you? क्या या तुमने पौलुस के नाम से बपतिस्मा लिया? Or were you baptized in the name of Paul? हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पर जो सेवा कर रहे हैं उनको आदर करो, बाइबल में लिखा है डबल आदर करो। Honor and doubly honor people who are serving here. लेकिन उनको अगर प्रभु परमेश्वर का जगह दे रहे हो तो वो मूर्ति पूजा के बराबर है। But if you're giving them the place that the Lord Jesus holds, then it is idol worship. हालेलुया। Hallelujah. तुम्हारा जीवन खतरे में चला जाएगा। Then your life will be in danger. हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पर आना है प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए, पिता परमेश्वर को जानकर उसमें बढ़ने के लिए आना है। When you come here, you come to know the Lord and to grow in Him. हालेलुया। Hallelujah. फेवरेटिज्म के लिए नहीं आना है। And there should be no favoritism तुम्हारा when you जीवन come here. बदलेगा नहीं भाई बहनों। Your life will not change. प्रभु के लिए आओ, प्रभु पिता मुझसे आज बात कर। And come with a heart saying, Lord, you speak to me today. हालेलुया। Hallelujah. फिर यहाँ पर वो बोल रहा है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैंने किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, है ना, ऐसा वैसा बोल रहा है। आगे आगे हम देखते हैं। And he's saying, I'm grateful to God that I did not baptize any one of you. यहाँ पर वो कह रहा है 18 वचन में, In verse 18 he says, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। But to us who are being saved, it is the power of God. क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों का ज्ञान को नाश करूंगा For it is written, I will destroy the wisdom of the wise और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। and bring to nothing the understanding of the prudent. कहाँ रहा ज्ञानवान? Where is the wise? कहाँ रहा शास्त्री? Where is the scribe? कहाँ रहा इस संसार का विवादी? Where is the disputer of this age? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? Has not God made foolish the wisdom of this world? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, For since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों का उद्धार करे। so it pleased God that through the foolishness of the message preached to save those who believe. हालेलुया, Hallelujah. है ना। क्रूस की कथा हमको सामर्थ देती है। The message of the cross gives power to us. दुनिया के लिए वो मूर्खता की बात है, And for the world it is foolishness. लेकिन हम जो विश्वासी लोग हैं वो परमेश्वर का सामर्थ है जो हमारे जीवन को बदल देता But है। we who are believers, it is the power of God that transforms our life. वो हमको अंदर से बदलता है, It transforms us from within. हमारे सोच को बदलता है, It transforms our thinking. हमारे विचारों को बदलता It है, transforms our thoughts. हमारी आदतें बदलता है, It transforms our habits. हमारा रहन सहन बदलता है। It changes our ये lifestyle. परमेश्वर का सामर्थ है। That is the power of God. हालेलुया, Hallelujah. आमेन। Amen. 26 में लिखा है, In verse 26. हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुटिल बुलाए गए। For you see your calling, brethren, that not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble are called. परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानियों को लज्जित करे। But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise. और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। And God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty. और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो कुछ है ही नहीं, उनको चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। And the base things of the world and the things that are despised, God has chosen. And the Hallelujah. things that are not, to bring to nothing the things that हमको are. परमेश्वर ने चुना है, हम लोग संसार के लिए मूर्ख लोग हैं। And the Lord has chosen us, and we may be foolish for the world. हम दुनिया के लिए मूर्ख लोग हैं, निर्बल लोग हैं, माइनॉरिटी है। And we might be weak, and we might be a minority for the world. हालेलुया, Hallelujah. लेकिन परमेश्वर के नजर में हम सबसे मूल्यवान लोग हैं। And we are most precious people in the eyes of God. क्योंकि यही पृथ्वी के ऊपर आकर हम सब प्रभु यीशु के साथ राज्य करने वाले And हैं। we will return to the same earth and reign with our Lord Jesus Christ. 1000 वर्ष तक हम प्रभु यीशु के साथ यही पृथ्वी के ऊपर राज्य करने For वाले हैं। 1,000 years we will reign on this earth with our Lord Jesus Christ. हालेलुया, Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? आमेन। तो ये ऐसा मूर्खों को क्यों चुना है प्रभु ने? And why has God chosen the foolish आगे उसका people? उत्तर लिखा है And the answer is ahead. 29 वचन में, In verse 29, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, that no flesh should glory in his presence. परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, But- जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। But of him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा, and righteousness and sanctification and redemption, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। that it, as it is written,
जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। He who glories, let him glory in the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हमारा घमंड का विषय हमारा प्रभु यीशु मसीह है। Our point of pride should be our Lord Jesus Christ. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you मसीह understanding? में घमंड करना अलग ही आशीष है। And it's a different kind of blessing when you boast in Christ. हालेलुया। Hallelujah. है ना, प्रभु में घमंड करने के लिए प्रभु ने हमको चुना है। And the Lord has chosen us to boast in Him. क्योंकि उसका जो महिमा है, उसका जो गौरव है, उसमें हमको सही में हम लोग उसके गौरव में शामिल होते हैं। And because truly we are partakers of His glory. हालेलुया। Hallelujah. है ना, ये कलसिया में विभाजन था। And in this church of Corinth there was division. है ना, कोई बोलता था मैं पौलुस का है, मैं अपोलोस का है, मैं इसका है, मैं कैफा का है। And someone was saying, I'm of Paul, I'm of Apollos, I'm of Cephas. है ना, Hallelujah. ये कलसिया में ऐसा नहीं होगा। And in this church this will not take place. ये कलसिया में हर एक व्यक्ति बोलेगा मैं प्रभु यीशु मसीह का हूँ। Everyone in this church will say, I belong to the Lord Jesus. हालेलुया। Hallelujah. मैं पास्टर का नहीं, मैं क्लिफर्ड ब्रदर का नहीं, मैं डैनियल ब्रदर का नहीं, मैं इसका नहीं, उसका नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह का हूँ। I don't belong to pastor, I don't belong to Clifford bro, I don't belong to Delon bro and anyone else. I belong to Jesus. हालेलुया। Hallelujah. हम में से कोई मारा नहीं क्रूस पर, यीशु मसीह मरा है। None of us died on the cross. Jesus died on the cross. हालेलुया। Hallelujah. हम में से कोई आने वाला नहीं बादलों पर, आजा मेरे बेटे, आजा मेरे कलसिया के मेंबर। None of us will come back on the clouds for you saying, come and join because you are my church member. हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह आ रहा है। Jesus is coming back. दुल्हन को लेने के लिए दूल्हा आ रहा है। The bridegroom is coming to take his bride. क्या दुल्हन तैयार है? Is the bride ready? हालेलुया। Hallelujah. बोलो मैं तैयार हूँ। Say, I am ready. प्रभु यीशु मैं तैयार हूँ। Jesus, I am ready. हालेलुया। Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की, Jai. यीशु के लहू की। Jai. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु की महिमा ही हमारा जीवन है। The glory of the Lord is our life. हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह जो हमारे अंदर रहता है, हमारे महिमा की है ना, मतलब इज द ग्लोरी। The Christ who dwells in us is the hope of glory. हालेलुया। Hallelujah. वो हमारे महिमा की आशा है। He is the hope of our glory. हालेलुया। Hallelujah. हमको उसके अंदर महिमा मिला है। We have been given glory in Him. हालेलुया। Hallelujah. उससे अगर बाहर जाकर हम अगर महिमा चाहेंगे तो गिर पड़ेंगे। And if we expect glory after stepping out of Christ, then we will fall, we will stumble. बहुत दूर तक नहीं चल पाएंगे। We will not be able to endure till very far. सेवकाई बहुत दूर तक नहीं कर And पाएंगे। ministry will not endure very far. लेकिन मसीह में अगर तुम महिमा पा रहे हो, But if I am receiving my glory in Christ, और मसीह का महिमा तुम्हारे जीवन से हर समय हो रहा है, and Christ is being glorified through our lives every moment, तुम अंत तक टिके रहोगे। then we will endure till the end. प्रभु के आने तक तुम बने रहोगे। And we will endure till the coming of the तुम्हारे Lord. जीवन में बैक स्लाइडिंग नहीं रहेगा। And there will be no backsliding in your lives. सिर्फ फॉरवर्ड मार्चिंग रहेगा। And you will just march forward. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? बोलो मुझे अभी समझ में आ रहा है प्रभु। Say, I am understanding now, Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है भाई, The Lord loves us a lot. इसीलिए सच्चाई हम पर प्रचार कर रहा है। And that is why He's preaching the truth. ये वचन चिकनी चुपड़ी बातें नहीं है, ये वचन सत्य है। And these are not words to pamper or flatter you. हालेलुया। Hallelujah. ये सत्य को तुम जानोगे, हर बंधन से तुम आजाद हो जाओगे। And when you know this truth, you will be free from every bondage. और तुम्हारा हृदय प्रभु को चाहने लगेगा। And your heart will begin to love the Lord. हालेलुया। Hallelujah. तुम प्रभु को सबसे महान ऐसा जानोगे। And you will know that He alone is the greatest. हालेलुया। Hallelujah. और एक वचन हम देखते हैं, And we'll go to another verse. और भजन संहिता का, We'll go to Psalms. थैंक यू जीसस। चौतीस 34. पहला वचन से, Verse 1 onwards. Psalms 34, verse 1 onwards. यहां पर दावीद राजा कह रहा है, King David is speaking here. मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। I will bless the Lord at all times. उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होते रहेगी। His praise shall continually be in my mouth. हालेलुया। Hallelujah. दावीद राजा कह रहा है, King David is saying this. हम लोग भी बोलो, मैं भी कह रहा हूं, And we shall also say that we are saying this. मैं हर समय, बोलो मैं हर समय, Say, I will always, हर समय परमेश्वर को धन्य कहता I will रहूंगा, always bless the Lord. और उसकी स्तुति मेरे मुख से हमेशा होते रहेगी। And His praise shall continually be in my mouth. हालेलुया। Hallelujah. कौन व्यक्ति परमेश्वर को हर समय धन्यवाद करेगा?
And who's the one who'll praise the Lord always? जो जानेगा कि वो कैसा अच्छा The है। one who knows how good the Lord is. हालेलुया। Hallelujah. जिसने चक्कर जाना है कि प्रभु यीशु कितना भला है। He who has tasted and seen how good the Lord Jesus is. हालेलुया। Hallelujah. जिसका प्रभु के साथ मुठभेड़ हुआ है और उसका जीवन बदल गया है, वो हर समय उसको धन्य कहता रहेगा। He who has encountered the Lord and his life is transformed, he will be the one who will praise the Lord always. हालेलुया। Hallelujah. ये सब ऑटोमेटिक होने वाली बातें हैं भाई बहनों। And these things are things that should happen automatically. हालेलुया। Hallelujah. जिस दिन तुम्हारा नया जन्म हुआ है, The day you got born again, पवित्र आत्मा स्वर्ग से आकर तुम्हारे अंदर रहने लगा है। the Holy Spirit came from heaven and began to dwell within you. और वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर काम शुरू कर दिया है। And that Holy Spirit has begun his work inside you. हालेलुया। Hallelujah. वो तुमको प्रभु यीशु मसीह के पहचान में बढ़ा रहा है। And he's growing you in the knowledge of the Lord जब भी Jesus. तुम बाइबल पढ़ते हो तो प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए बाइबल पढ़ो। And whenever you read your Bible, you should read it to know Jesus. हालेलुया। Hallelujah. सेवकाई करने के लिए बाइबल नहीं पढ़ना है। Don't read the Bible to minister. मुझे यीशु मसीह को जानने के लिए बाइबल पढ़ना है। I should read the Bible to know Jesus. क्योंकि जब मैं उसको जानूंगा तो मैं हर समय उसको धन्य कहता रहूंगा। Because when I will know him, I will begin thanking him every moment. क्योंकि मैं जितना उसको जानूंगा उतना मेरा जीवन बदलते जाएगा। Because the more I know him, the more my life will be transformed. हालेलुया। Hallelujah. और हर समय मेरे मुख से उसकी स्तुति होते रहेगी। And his praise will continually be in my mouth. हालेलुया। Hallelujah. मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। My soul shall make its boast in the Lord. है ना, हमारा जो घमंड है किसमें करेंगे हम? प्रभु में घमंड करेंगे। Our boast will be in the Lord. हालेलुया। Hallelujah. बीमारी आया तो भी बोलेंगे नहीं, ये बीमारी कुछ नहीं है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया है। Even if we encounter sickness, we will say the sickness is nothing. I've been healed by the stripes of Jesus. हालेलुया। है ना, Hallelujah. प्रभु की बातों में हम घमंड करना सीखेंगे। We will learn to boast in the things of the Lord. हालेलुया। Hallelujah. है ना, हमको हमारे मुंह से बीमारी की बातें नहीं निकलेगी, प्रॉब्लम्स की बातें नहीं निकलेगी, हमारे मुंह से सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की बातें निकलेगी। We will not be confessing about sickness, about the problems in our life, but we will confess the things of God. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा क्या? Are you understanding? मेरे ख्याल से समय हुआ है। I think the time is up. ओके, हम लोग कंक्लूड करेंगे। आप सब खड़े हो सकते हैं। You can all stand. स्वर्गीय पिता, इस समय के लिए हम बहुत 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 धन्यवाद करते पिता। Father, we thank you a lot for this time. आपने आपके पवित्र आत्मा और अग्नि के द्वारा हर एक को तूने भेंट किया है प्रभु, इसके लिए And you've धन्यवाद। met everyone with your Holy Spirit and fire. That's why we thank प्रभु you. आपका वचन जीवित और प्रबल हर एक के अंदर हुआ है प्रभु, इसके लिए And धन्यवाद। Father, your word is alive and powerful within everyone. That's why I thank you, Lord. प्रभु ये कलशया का मस्तक आप हो प्रभु, और इसको आप बना रहे हो। नरक के दरवाजे इसके विरोध में खड़े नहीं होंगे। And Father, you are the head of this church, and the gates of hell will not prevail against this church. And you are धन्यवाद building पिता, it. जो काम आपने शुरू किया उसके लिए धन्यवाद। We thank you for the work that you have begun here. आप इसे परिपूर्ण करोगे पिता, इसके लिए धन्यवाद। And Father, we thank you that you will complete this work. यहाँ पर आने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु वैयक्तिक रीति से आपको जानने वाला व्यक्ति बनेगा। And everyone who comes here will personally know you. और आपके द्वारा सीख कर वो आप में बढ़ेगा। And this person will be taught by you and grow in you. धन्यवाद पिता। Thank you, Father. सारा महिमा, All honor सारा आदर and glory, केवल आप ही को देते पिता। it be to you, Lord. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। We ask in the name of Jesus. आमेन। Amen. थैंक यू जीसस। आप सब बैठ सकते हैं। हाँ, सो ये समय अगर आपको पवित्र आत्मा चलाते हैं तो ऑफरिंग बॉक्स उधर रखा है, आप ऑफरिंग बॉक्स में अभी दे सकते हैं। QR कोड भी है, आप स्कैन कर सकते हैं। और अगर आपको मीटिंग के बाद में पेमेंट करना है, QR कोड स्कैन करना है तो आप कर सकते हैं। स्क्रीन पे नीचे जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं उनके लिए स्क्रीन के नीचे QR कोड, बैंक डिटेल्स हैं। सो आप जैसा आपको पवित्र आत्मा चला रहे हैं, जो भी आपको सो करना है मिनिस्ट्री में, जैसे कि आपको पता है कि बीज बोना ज़रूरी है, राइट, तभी फल आता है। हालेलुया, यस। सो आप दे सकते हैं। और क्या आप तैयार हैं आगे? आई एम श्योर सब उधर ही देख रहे हैं। सो अभी वैसे सही बात है, समय है उधर ही देखने का, राइट, जहाँ प्रोजेक्टर पे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 9 साल, वैसे 12 साल है, पर
आई थिंक 12 साल के फ़ोटोज़ तो अवेलेबल नहीं है, तब फ़ोन वोन इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आता था, बट कुछ फ़ोटोज़, ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं है क्योंकि फेलोशिप में हम लोगों ने ज़्यादा प्रभु में इतने मग्न हो गए थे, जैसे अंकल बता रहे थे कि ध्यान ही नहीं रहा कि फ़ोटोज़ लेनी है, बट जो कुछ छोटी छोटी ग्लिम्स है, जो कुछ चीज़ें हैं वो हमने कलेक्ट किया है। हमारे अमीश ब्रदर ने, उन्होंने बहुत दिल से प्रभु के लिए ये पीपीटी बनाया है ना, ताकि आप सब एंजॉय कर सकें। हालेलुया। क्या आप एक्साइटेड हैं? कुछ भी नहीं, एक्साइटमेंट दिख ही नहीं रहा मुझे। क्या आप तैयार हैं? अभी अंकल का वर्ड खत्म हुआ तो एक्साइटमेंट हाई लेवल पे होना चाहिए था। हालेलुया। यस, आई एम श्योर आपने वचन एंजॉय किया, सब इनकरेज हो गए। प्रभु की दुल्हन सभी है हम, राइट? सब तैयार हैं? यस। सो हम इनवाइट करना चाहते हैं, आई थिंक थोड़ा सा सेटिंग चालू है आप ही के लिए। थैंक यू जीसस। सो फोटोज देखते वक्त आपको थोड़ा हूटिंग करना है तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब वो शेयर कर रहे हैं तो वो हम सुन लेंगे। ओके। सो एक जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं अमीश ब्रदर का। सो ओवर टू यू। प्रेज द लॉर्ड। सब खुश है आज? देखा, हमने पहले ही बोला था आगे आ जाओ। आगे से खाना बंटना चालू होने वाला है। ठीक है, तो आज हम, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आज 5वीं एनिवर्सरी है चर्च की, जब से चर्च शुरू हुआ है, किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज। लेकिन जैसे कि बताया अंकल ने भी कि इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी, जब हम बाइबल स्टडी के लिए मिलते थे। तो इट्स लाइक जैसे कोई पेड़ शुरुआत से उगता है ना, तो उसकी जो जड़ें होती है वो पहले ग्रो होती है ना। वैसे 5 साल 7 साल तो सिर्फ जड़ें मजबूत होने में चली गई, किसी को दिखा नहीं कि कुछ हो रहा है, कुछ काम हो रहा है प्रभु का, लेकिन प्रभु को दिख रहा था, है ना, और वो विश्वास योग्य था। तो आज जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो सिर्फ शुरुआत से हम देखेंगे कि क्या हुआ, कैसे शुरू किया प्रभु ने, है ना। और हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमको नॉस्टैल्जिक फीलिंग आनी चाहिए, लेकिन हम इसलिए कर रहे कि जितने भी लोग अभी आए हैं रिसेंटली ये 2 सालों में, उन सबको पता चले कि प्रभु ने कैसे विश्वास योग्यता से हमारे साथ प्रभु चला और ये कार्य उसने किया, और बहुत आगे प्रभु क्या करने वाला है ना। तो ये सारी बातें हम जानेंगे, और मेरा विश्वास है 100% कि आज के बाद आप लोग इस कलीसिया से हमेशा के लिए जुड़ जाओगे, है ना। तो हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, ये बाइबल स्टडी शुरू हुआ था 2015 में, उसके भी पहले होता, लेकिन मैं 2015 में आया था, तो इसलिए मैंने 2015 लिखा है, क्योंकि फ़ोटोज़ भी उसके बाद की ही है, मुझे पुरानी फ़ोटोज़ नहीं मिली, ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन प्रभु ने शुरू किया ये, और ये आप देख सकते हो, इसमें से कुछ चेहरे आज भी यहाँ पे है, आज शायद पहचान में नहीं आएंगे, मेकअप करके आए हैं, लेकिन यही लोग हैं जो आप देख सकते हो। ये हमारी आज की बर्थडे गर्ल सुनेत्रा सिस्टर, जो ऐसे कोने में आके बैठती थी, सिर्फ सुनती थी, आज वो सिर्फ बात करती है, पहले सिर्फ सुनती थी। और ये हमारी मेडो सिस्टर है, जिनकी आज शादी हो चुकी है, वो यहाँ पे थी पहले, बहुत बड़ी प्रभु की प्रचारक है आज वो चेन्नई में, उन्हीं अभी खुद की सेवकाई है, लेकिन आज वो आज भी मानती है कि ये मेरा पहला चर्च है, यहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। और नीचे आप देख सकते हो, ये सागर ब्रदर थे, तो छोटा वर्शिप होता था, एक ही कीबोर्ड था। और ये अंकल देख सकते हैं आप यहाँ पे, हमारे पास्टर,
हमारे साथ सबके साथ बैठते थे। फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लोग आते थे। उसमें भी जो 2 लोग दिख रहे थे, एक मेरा भाई है और एक मेरा दोस्त है, जो दोस्त मुझे हमेशा गोली देता था। हाँ, वो एक ही दिन आए थे, इसलिए उस आगे फोटो में। तो बहुत कम लोग थे, लेकिन जैसे हम करते गए, क्योंकि हम बैठते थे बाइबल लेके और एक एक वचन लेके हम पढ़ते थे। उसमें अगर किसी को कुछ सवाल है तो उधर ही पूछते थे। और कभी किसी ने ऐसे बोला नहीं कि अरे तुमको इतना भी नहीं आता क्या। मतलब सवाल पूछने का एक आज़ादी था। आज आप कोई भी चर्च में जाओ, आप सवाल नहीं पूछ सकते, आपको पास्टर समझाएंगे नहीं, क्योंकि पास्टर तक पहुंचना ही मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे पास्टर हमारे साथ बैठ के वचन पढ़ते थे, पढ़ाते थे। और ऐसे ही होता था पहले के दिनों में, जब शिष्य, यीशु के शिष्य जब जाते थे, पौलुस, वो ऐसे ही चर्च सेटअप किए उन्होंने, है ना। तो हम उसी को देख के हम स्टडी करते थे, वचन में बैठते थे। तो धीरे धीरे चर्च बढ़ता गया, सॉरी नॉट चर्च, फेलोशिप बढ़ता गया। तो आप देख सकते हो, ये मनोज भगत का ऊपर का वाला रूम है। यहाँ पे ऐसे हम बैठते थे। कोई आता था बीमार तो उनके लिए प्रार्थना होती थी। हम में से भी अगर किसी को प्रार्थना की जरूरत है तो हम खुलकर बताते थे कि हमें प्रार्थना चाहिए। और ये जब ग्रो हो रहा था तो सिर्फ नंबर नहीं बढ़ रहा था, सिर्फ लोग ऐड नहीं हो रहे थे, लेकिन एक और चीज बढ़ रही थी कि हम में प्रेम बढ़ रहा था, है ना। हम एक दूसरे के लिए एक भाई बहन, वो रिश्ता हमारा बन गया था, है ना। जैसे यीशु ने कहा था कि जब तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तब लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यीशु ने कभी नहीं कहा तुम बहुत बाइबल पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा प्रचार करोगे तब लोग कहेंगे तुम मेरे शिष्य हो। नहीं, हमारे बीच में जो प्रेम है उसके कारण हम जाने जाते हैं कि हम मसीह है, हम यीशु के लोग हैं, है ना। और वो बात बढ़ रही थी, तो उससे क्या हुआ, और लोग आने लगे। जैसे आप देख सकते हो ये फोटो में बहुत सारे लोग घुस रहे थे। इतने सारे लोग हो गए थे कि अभी पास्टर का घर हमारे लिए छोटा पड़ने लग गया, है ना। दिल बहुत बड़ा है उनका, वो कभी भी आपको नहीं बोलेंगे हमारे घर मत आओ। उनका घर हमेशा खुला रहता है वचन के लिए, लोगों के लिए। दिल में बहुत जगह थी लेकिन घर में जगह नहीं थी अब, तो क्या करें। तो अब हम यहाँ पे आके हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु अब हमें आगे का क्या करना चाहिए। तो प्रभु ने हम सबको चलाया। तो हमने कहा कि चलो अब एक मीटिंग करते हैं, हमें लोगों के लिए आशीर्वाद बनना है। तो हमने ये मीटिंग की, पहली मीटिंग KHM की। कोई बड़ी सेवकाई नहीं, कोई बड़ा सेवक नहीं आ रहा यहाँ पे, सब हम ही लोग हैं जो विश्वास करते कि हम प्रभु के बेटे हैं। हमारे पास वही सामर्थ है, वही आत्मा है जो यीशु के पास है ना। और उसी विश्वास के साथ हमने सभा ऑर्गेनाइज की थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा स्कूल था, वहाँ पे सभा हुई थी। और मुंबई से भी लोग आए थे, काफ़ी लोग, तो काफ़ी लोग आए थे। और ये मीटिंग के बाद की फ़ोटो है। और ये आप राइट में देख सकते हो, हमने वचन बांटा था। इसके वीडियोस अभी भी है हमारे यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते फिर अब ऐसा हुआ कि अब रेगुलर मिलना है, रेगुलर वचन बांटना है। क्योंकि ऐसा हो गया था कि हम जो लोग थे, हम सबको वचन आता है, सब एक पेज पे आ गए हैं, लेकिन नए लोग आने लग गए। अभी नए लोग के सामने अगर आप हिब्रू की बात करोगे तो उनको समझेगा नहीं, तो उनको बेसिक से लेके जाना है। तो क्या करें, इसलिए हमने चर्च शुरू किया ताकि यहाँ पे आके लोग वचन सुन पाए। और लोगों को एक लेवल के बाद फिर हम उनको फेलोशिप में ले सकते हैं, बाइबल स्टडी में ले सकते हैं। तो यहाँ पे वो दिन आया 13 अक्टूबर 2019, आज से 5 साल पहले किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज की पहली मीटिंग हुई। ये भी एक स्कूल में हुई, जैसा आप देख सकते हो उधर
वो बच्चों वाला सब, ये एक्चुअली एक डे केयर का सेटअप है। दूर नहीं है, यहाँ से आप नीचे जाओगे ना, इधर ही है, यहाँ पे मीटिंग होती थी। ये ज़्यादा लेडीज मीटिंग जैसा लग रहा है, लेकिन जेंट्स भी थे इसमें। तो काफ़ी लोग आए थे पहले दिन। छोटा स्पीकर था वहाँ पे, आप देख सकते हो। और ये सभा हुई, यहाँ पे देख सकते हो। हमारे पास सेटअप नहीं था, हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। एक माइक पे 2 लोग, फिर एक माइक पे 4 लोग। कॉयर बढ़ रहा है, माइक नहीं आ रहे थे, लेकिन तो बढ़ रहा था सब। प्रभु दे रहा है, चला रहा है सब, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेडो सिस्टर है, सब लोग आते थे। संडे को होती थी ये मीटिंग्स। सब अच्छा चल रहा था, हम सब खुश थे। हम सोच रहे थे अभी इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके बाद ये चीज़ हो गई, सब बंद हो गया। बोला यार 2-3 मीटिंग किया था, ख़त्म हो गया, अब क्या करें। लॉकडाउन हो गया, मोदी जी ने आके बोल दिया घर पे बैठो। उसके बाद लेकिन जैसे पास्टर ने कहा है कि सिर्फ प्रभु के साथ सहभागिता करना काफ़ी नहीं होता है, हमको एक दूसरे को भी मिलना होता है ना। क्योंकि प्रभु का आज्ञा है वो कि जैसे इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है कि हमारी सभाओं में आना न छोड़ो, मतलब जब हम आके मिलना मत छोड़ो। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको तो आदत पड़ गई है कि नहीं जाना है, नहीं मिलना है लोगों से, हम अकेले अच्छे हैं। तो पौलुस कह रहा है कि बल्कि हमें तो एक दूसरे को उत्साहित करना चाहिए। और जैसा कि तुम देख ही रहे हो कि वह दिन निकट आ रहा है ना। जैसे पास्टर ने भी अभी कहा कि यीशु के आने का समय आ रहा है, तो इस दिन के नज़दीक जा रहे हैं हम हर दिन, तो हमें और मिलना ज़रूरी है। तो लॉकडाउन की वजह से हम मिल नहीं पा रहे थे, तो हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, हमने जूम मीटिंग चालू कर दी। हम ऑलमोस्ट आई थिंक रोज मिलते थे शाम को, कि सब घर पे थे, सबका वर्क फ्रॉम होम था, तो रोज सब लोग घर से मिलते थे। तो इससे क्या होता था, क्योंकि बाहर दुनिया में जाओ, आप टीवी पे लगाओ तो रोज नंबर बढ़ रहा था लोगों का, इतने लोग को हो गया, इतने लोग मर गए। देयर इज नो गुड न्यूज़। सो फॉर गुड न्यूज़ वी स्टार्टेड मीटिंग, जहाँ पे हम गुड न्यूज़ गॉस्पेल स्टडी करते थे, वचन पढ़ते थे। तो ये हम सब लोग फिर भी कनेक्टेड थे। और ये कॉर्नर वाली फ़ोटो आपको दिख रहे हैं, सब चाय दिखा रहे, वो थोड़ा लॉकडाउन कम हुआ था, उसके बाद हम मिलना चालू किए थे। लेकिन ये मीटिंग्स की वजह से एक फ़ायदा हो गया कि हम बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ गए जो दूर है, मतलब राजस्थान से, हरियाणा से, साउथ से, बहुत सारे लोगों के साथ हम जुड़ गए। तो उनको भी ज्वाइन होना होता था, तो हमने फिर ये सबको जूम मीटिंग पे लाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा माइक है, तो मनोज ब्रदर के घर पे टीवी पे कैमरा लगा के हम मीटिंग करते थे, है ना। तो वो टाइम पे ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि हमको मिलना नहीं छोड़ना है ना। क्योंकि हम प्यार करते हैं ना एक दूसरे से, तो एक दूसरे का ख्याल रखना है, पूछना है वो क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ये मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ दिखाने के लिए नहीं थी, ये आज भी हो रही है, आज भी हम लोग साथ में है। आप सब लोग जो लोग अभी नए आए हैं, आप लोगों को शायद संडे का ही पता होगा कि संडे को मीटिंग होती है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि और क्या क्या होता है जिस पे आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो अभी। और अगर आप करोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि मेरा बदला है। मेरा गवाही मैं दूंगा बाद में, बट ये सब जब हो रहा था तो हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ने लगा, क्योंकि हमको लोगों से कनेक्ट करना पड़ता था। तो जैसे हमने सोचा कि अरे यार हम वचन दे रहे तो हर बार वापस बेसिक में जाना पॉसिबल नहीं है, तो हमें वीडियोस बनाने का सोचा हमने। तो जैसे वीडियो बनाने का सोचा, हमारे पास मीडिया सेटअप नहीं था। ये आप देख सकते हो क्या क्या हो रहा है इधर। ये हमने बनाया था। हाँ, ये जो शू रैक था उसको हमने आगे रखा था टेबल जैसा।
उस पे एक माइक ऐसा लटका हुआ था, ये मनोज ब्रदर का मुंडी है। पर्दे के पीछे ऐसे टाई कर रहे थे सब, ऐसा कर्टन बनाने के लिए। ऐसा करके ये सेटअप बना था, ये भी नहीं चला। फिर हमने ये पीछे का बैकड्रॉप बना के लिया। ये पूरा लाइट सेटअप मनोज ब्रदर ने, अंकल ने, मैंने मिलके बनाया है। ऐसे 4 पाइप लाए थे, उसको ट्यूब लगाए थे और ऐसे आगे करके फिर भी। और ये कैमरा जो यूज़ कर रहे थे, ये फोटोग्राफी वाला कैमरा है, ये इससे वीडियो अच्छा नहीं आता इतना, बट फिर भी हम ट्राई कर रहे थे। फिर भी ये नहीं हो रहा था, बट कैसे न कैसे वीडियो बनाए, डाले लोगों के साथ दे दिए, सो दैट ये टाइम पे ऐसा हो रहा था ना, यूट्यूब पे लोग आके ये बोल रहे थे कि कोरोना परमेश्वर का श्राप है, परमेश्वर का क्रोध है, ऐसा बहुत लोग बोल रहे थे यूट्यूब पे। तो हमारे लोग उनके मतलब लोगों को सच्चाई पता चले, लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में पता चले, इसलिए हम वीडियो बना के डाल रहे थे। तो ये सब हम कर रहे थे, तो प्रभु ने देखा, प्रभु को बहुत दया आई होगी कि इतना भयानक मीडिया सेटअप करके हम कर रहे। तो प्रभु ने अपनी दया से हमको बहुत सारी चीज़ें दे दी। आज हमारे पास लैपटॉप, लाइट्स, ऑडियो सेटअप, सब कुछ आ गया। और जिस रूम में ये होता था वो रूम भी बदल गया। आप देख सकते हो मनोज ब्रदर का रूम बहुत सुंदर है आज। तो ये सारी बातें प्रभु ने दी, इसमें कोई मनुष्य का कोई काम नहीं है, प्रभु ने लाया सब कुछ। और उसके बाद फिर हम लोग, आई थिंक 2021 था, तो हम लोग खंडाला गए थे स्टडी करने। ये 3 दिन हम वहाँ पे स्टेकेशन जैसा था। देखो मैं आपको वापस बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती है आपको पता नहीं है। सिर्फ संडे को आके लॉर्ड सफर करके पीछे से निकल जाओगे ना, तो ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, फेलोशिप में आए, तो ये सारी चीज़ें भी आपको मिलेगी, है ना। तो सिर्फ, ठीक है, मैं आऊँगा उस पर वापस, ठीक है। तो ये हमारा बाइबल स्टडी हुआ था, 3 दिन हम लोग ऐसे मिलके स्टडी करते थे। बहुत बड़ा हॉल था उधर। और ये खाना इतना अच्छा नहीं था, बट ठीक है, स्पिरिचुअल खाना बहुत अच्छा था। और ये बहुत अच्छा जगह था, वहाँ पे हम 3 दिन रहे थे। बहुत अच्छा स्टडी हुआ था, पूरा वाइट बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन आंसर, होली स्पिरिट सेशन। आई थिंक यही सेशन था कि आई थिंक बाद में और एक हुआ था, इसमें विक्टर था क्या? आई थिंक देयर इज अनदर सेशन, राइट? हाँ, और एक सेशन था जिसमें विक्टर ब्रदर आए थे, उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया था। वो पूरा ऐसा वाइब्रेटर बन गए थे एकदम पूरा हिल रहा था वो 2 दिन तक। बहुत पावरफुल था, बहुत मज़ा आया था। उसके बाद यहाँ से हम वापस आए नवंबर 2021, वापस एक मीटिंग की हमने होली स्पिरिट वाली, यही हॉल में। यहाँ पे आप देख सकते हो, उस हॉल से डबल क्राउड आया था यहाँ पे, और बहुत सारे लोग आए, आशीषित हुए थे, बहुत सारे लोगों का जीवन बदला था। और ये सब आए हमको करती रहनी है वापस, ताकि लोगों को, जैसे पास्टर ने कहा, कि लोगों को पता चले परमेश्वर कितना अच्छा है ना। उसके बाद वापस हम 3 दिन गए थे, नीलशी करके एक जगह है जो बहुत ऐसा बहुत दूर है, ऐसा लगेगा आपको जंगल में रह रहे हो आप, क्योंकि वहाँ पे जंगल के प्राणी आते हैं। तो वहाँ पे हम गए थे 3 दिन। ये वहाँ की फोटोज है। वहाँ पे प्रॉफिट आया था, एक प्रॉफिट सुब्बी वर्गीस केरला से, वो हमारे साथ रहे थे 3 दिन। उनके साथ हमने बहुत अच्छा समय बिताया। और आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर एकदम अच्छी फ़ोटो निकाली, यहाँ पे विक्टर ब्रदर का बपतिस्मा हुआ था। फिर हम रात को ये किए थे। उसके बाद यहाँ पे गए, यहाँ पे अग्नि था, यहाँ पे पवित्र आत्मा का अग्नि था। यहाँ पे आप देख सकते हो सब जन पड़े हुए थे जमीन पे, मतलब इट वॉज रियली क्रेजी। तो ये सब हुआ है पहले। तो ये यहाँ पे हम लोग थे। फिर वहाँ से
अप्रैल आया कि हमने जब जैसे कहा कि अरे हमारा चर्च तो है लेकिन पास्टर का ऑर्डिनेशन नहीं हुआ है अभी तक, तो पास्टर का ऑर्डिनेशन हुआ तमिलनाडु में। तो मैंने पहली बार देखा कि पास्टर के ऑर्डिनेशन के लिए पूरा चर्च जाने को तैयार है। हमको सब जाने का है, तमिलनाडु सबको जाना है। तो मेरे पास ज़्यादा फोटोज़ नहीं थी, लेकिन ये एक फ़ोटो मिली, तमिलनाडु में जाके हम तमिल बन गए थे। तो वहाँ पे पास्टर का ऑर्डिनेशन हुआ, हमारे गणेश अंकल बन गए पास्टर गणेश रेड्डी। तो ये था 2022। वहाँ से फिर जैसे वापस आए, मैंने बोला, अब सबने बोला कि भाई पास्टर, अब पास्टर बन गए तो हमें शुरू करना चाहिए। तो हमने मीटिंग वापस चालू कर दी यही हॉल में। यहाँ पे आप देख सकते हो सेटअप काफ़ी अलग था पहले, ये हॉल भी अलग था। फिर जैसे यहाँ पे मीटिंग चालू हुई, ये हॉल भी बदल गया, जैसे मनोज ब्रदर का रूम बदल गया। फिर आया एक वापस एक प्रॉफिट आए थे हमारे पास, आई थिंक प्रॉफिट श्रीजीत। तो वो आए थे जून 2022, सॉरी मई क्यों लिखा है मैंने, सॉरी। तो वहाँ पे हमने बताया था सबको कि मीटिंग है। तो ये बाजू वाले अल्पाइन होटल में हुआ था मीटिंग, और पूरा हॉल पैक था। बहुत गर्म हो रहा था आगे, क्योंकि बहुत लोग आ गए थे और बहुत लोग आशीर्वादित हुए इस मीटिंग से भी। ये हमारे विश्वास ब्रदर है। तो बहुत लोग आशीर्वादित हुए, लोगों के मनों के भेदों को खोला प्रभु ने, बहुत सारी बातें उनके द्वारा प्रभु ने बात की। और ये सब होते होते अब हमारा फोकस पहले से यही रहा है कि वी हैव टू रेज सन्स ऑफ गॉड, है ना। जैसे पास्टर ने कहा कि यहाँ पे आके आप पास्टर को जानने नहीं आ रहे हो। ये बहुत सारे कलीसिया में आपने जाके देखा होगा कि पास्टर ही होगा, आगे उनकी फैमिली होगी, बाकी लोग नहीं होते, एक ही पास्टर हमेशा रहते हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों को ट्रेन किया जाता है ना। लोग जो आते हैं पहले, वो आज आपको देखेंगे कि वो आगे है ना। जो 5 साल पहले आए थे वो उधर ही नहीं है, वो आज आगे काम कर रहे हैं, फ्रंट पे है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल है ये लोग, विक्टर, मिशु, सैम, सुनेत्रा सिस, विश्वास, आशीष है, हमारे सैम भाई है, ये अभी का रीसेंट फोटो है। तो ये सारे लोग जो है, ये हमारा काम यही है कि यहाँ पे आके सबको उस लेवल पे लाना है जहाँ पे अगर कोई जाता भी है यहाँ से तो हमें दुख नहीं होगा। मतलब वो जा रहा है उसका दुख होगा, लेकिन वो एक कारण के लिए जा रहा है, वो एक आशीष बनने के लिए जा रहा है ना। हम इसलिए इसको ऐसे नहीं देखते कि हमारे चर्च का मेंबर कम हो रहा है, लेकिन एक योद्धा वहाँ पे जा रहा है ना। जैसा हमारे विश्वास ब्रदर गए अभी, बहुत आई होप बहुत जल्दी वो हमारा शाखा चालू करेंगे उधर यूएस में। ये मैं नहीं बोल रहा, वो खुद बोल रहे थे, वहाँ का ब्रांच मैं संभालूंगा। तो ये सारी बातें हुई है, प्रभु ने की है। और ये करते करते जैसे मैंने कहा, हमारा विजन, हमारा क्या है विजन, आगे चल के हमें क्या करना है। तो जैसे कहा मैंने कि हमें शिष्य बनाने है ना। हमने नहीं कहा, यीशु ने कहा है, यू हैव टू मेक डिसाइपल्स। इसलिए यहाँ पे आके एक बात, सॉरी मैं भूल गया बताना, कि चर्च चालू करना हमारा विजन कभी नहीं था, हमारा इच्छा भी नहीं था। मैं एक ऐसे चर्च से आता हूं जो इस चर्च से 20 गुना बड़ा है, in terms of finance, in terms of space, in terms of members, everything. लेकिन वो चर्च में मैंने जो सीखा, लेकिन यहाँ पे आके जो मैंने देखा, वहाँ पे जो मुझे नहीं दिख रहा था वो यहाँ पे दिख गया। कि यहाँ पे प्रभु का प्रेम मुझे दिखा, कि लोग सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेटस गेम नहीं चल रहा है, यहाँ पे कोई इनसिक्योर नहीं है कि भाई मेरा पोजीशन किसी ने ले लिया तो मेरा क्या होगा। सब यहाँ पे यीशु को जानने आते है ना। तो यही बात आज भी होती है, आज भी चालू है।
तो आप सब लोग जो नहीं आते हैं फेलोशिप को, सैटरडे को जो होता है, ये आपके लिए बता रहा हूँ। आप जो जहाँ पे आ रहे हो ना, ये हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ऐसा बोल सकते हो। हमारा मेन पार्ट जो है ना वो सैटरडे को होता है, जहाँ पे एक्चुअली शार्पनिंग होता है, जहाँ पे एक्चुअली लोग बदलते हैं। क्योंकि चर्च इज गुड प्लेस टू कम टुगेदर, वर्शिप, लिसन टू द वर्ड, बट इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन द वर्ड ऑफ गॉड, आपको स्टडी में आना पड़ेगा, फेलोशिप में बैठना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। आप जब तक ऐसा पीछे रहोगे ना कि अरे नहीं यार संडे हो गया, लॉर्ड सफर किया, प्रेज द लॉर्ड किया, 4 लोग को निकल गए, ऐसा करोगे तो नहीं चलेगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये परिवार बढ़े, है ना, ये प्रभु का परिवार है। तो ये हमारा जो विजन है वो यही है कि हमें डिसाइपल बनाने हैं वर्ल्ड वाइड। और ये सारी चीज़ें जो देख रहे हो आप यहाँ पे, किंगडम बाइबल कॉलेज, मीडिया स्टूडियो, किंगडम बाइबल स्कूल, चर्च, ये सारे चीज़ों के लिए हमको जगह चाहिए, है ना। हम विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु एक जगह देगा जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो पाएगी। लेकिन आज हमसे जितना हो पा रहा है उतना हम कर रहे हैं। और ये सिर्फ मैं इसीलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे परमेश्वर के राज्य में वो तो करोगे आप, बट खुद का एक विलिंगनेस भी चाहिए हमें, क्योंकि प्रभु के राज्य को बांधने के लिए लोगों की जरूरत होती है ना। प्रभु लोगों के द्वारा राज्य बनाता है ना। प्रभु का राज्य जो है वो हमारे अंदर है ना, चर्च के अंदर नहीं है। किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। सो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ में आने चाहिए जो प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए एक जैसा मन रखते हैं। तो ये चीज़ें हमें करनी है कि हमें स्टडी मटेरियल भी बनाना है रीजनल लैंग्वेजेस में, मतलब हिंदी, मराठी, जो भी आपका लैंग्वेज, अगर आपको कॉलिंग है, आपको लगता है कि आप इस एरिया में हेल्प कर सकते हो, तो आप आगे आ सकते हो, पास्टर से मिल सकते हो। क्योंकि अभी करंटली ऐसा चल रहा है कि ये सब हम कर रहे हैं, लेकिन ये हमें लंबे समय तक करना है, हमको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। तो सिर्फ आके चले जाना, आई डोंट थिंक सो दैट इज़ अ गुड थिंग। हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचना है, उसकी राज्य की खोज करनी है ना। तो जैसा कि मैंने कहा, हम लोग एक परिवार है, परमेश्वर का परिवार, और ये परिवार को इतना ही नहीं रखना है। अगर आप इस फोटो में नहीं हो तो आपकी गलती है, आपको नेक्स्ट टाइम आने का है, ये हमारी गलती नहीं है। मैंने फिर भी 2 फोटो ढूंढे जिसमें सब लोग हो, अगर फिर भी आप नहीं हो तो आपने मिस किए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ होगा, मैं तो बोलता हूँ आप जब तक सैटरडे को आना चालू नहीं करते तब तक इसमें आप नहीं आ पाओगे। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि फोटो में आओ, लेकिन ये जो है ना, ये एक ग्रुप ऐसा है ना जहाँ पे आपको इनसिक्योर फील नहीं होगा कभी कि कोई क्या कहेगा, कैसा चल रहा है, कुछ नहीं। और ये मैं पिछले 10 साल से देखते आ रहा हूँ, इसलिए मैं गवाही के तौर पे बता रहा हूँ। मैंने इसलिए नहीं बनाया है कि मुझे कुछ करना था, मुझे एक गवाही बता रहा हूँ मैं आज आप सबको कि परमेश्वर ने जो किया है वो आगे होता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा। और प्रभु बहुत भला है कि प्रभु ने कहाँ कहाँ से लोग लाके जोड़े हैं यहाँ पे। पहले तो हमारे पास्टर आए, फिर वो एक चर्च गए, फिर वहाँ से उनको सच पता चला, फिर वो एंड्रू ओमेक के टीचिंग सुनते थे, फिर वहाँ से फेलोशिप चालू हुआ, फिर बहुत सारे लोग आए, मेडो सिस्टर आई, हर्षा सिस्टर आई, सुनेत्रा सिस्टर आई। ये सब लोग अपने प्रॉब्लम में से आए किधर न किधर, लेकिन एक बार आ गए तो चिपक गए। अभी कोई छोड़ने का नहीं सोच रहा है, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे शब्द लिखा है, ये फैमिली को आप छोड़ के नहीं जाते हो कभी, है ना। तो ये प्रेम जो है ना, ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये प्रभु ने बनाया है, ये हमने ग्रुप नहीं। दिस इज नॉट अ क्लब, दिस इज अ फैमिली, दिस इज गोइंग टू ग्रो
So it's our responsibility. We should go ahead and grow this family. तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर, हाँ, एक पॉइंट कि अगर फैमिली है तो फैमिली के एल्डर्स होते हैं. कुछ लोग हैं जो मैं चाहता हूँ कि आज हम उन लोगों का आदर करें. ये उनके लिए भी शॉकिंग होगा क्योंकि उनको पता नहीं है हम ऐसा कर रहे हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. कैसा लगा आप लोग को? प्रभु बहुत अच्छा है, बहुत भला है. प्रभु ने परिवार बनाया है और ये परिवार प्रभु का परिवार है और ये आगे बढ़ता रहेगा. अभी आपका चॉइस है, आपको इसमें जुड़ना है या सिर्फ इसको देखना है संडे को. डोंट बी अ विजिटर, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. क्योंकि नीति वचन में कहा है कि जैसे लोहा लोहे को तराशता है ना, वैसा एक दोस्त अपने दोस्त को तराशता है. तो जितना ज़्यादा आप फेलोशिप में रहोगे, जितना ज़्यादा मिलोगे, फेलोशिप में आओगे, जैसे कि अंकल ने बताया, मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग बात है. मैंने आज तक किसी पास्टर को ऐसे बोलते हुए नहीं सुना कि किसी और के थ्रू मेरा जीवन बदला है जो उनके ही चर्च में आते. मैंने हमेशा पास्टर को ऐसे देखा कि भाई, मतलब एक लेवल होता है उनका, वो कभी वहाँ से ही बात करते. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे पवित्र आत्मा सबके द्वारा बात कर रहा है क्योंकि हम सब प्रभु के बेटे हैं. कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो नीचे है, जिसको पवित्र आत्मा थोड़ा कम मिला है, हमको ज़्यादा मिला है, ऐसा नहीं है. प्रभु ने सबको समान आत्मा दिया है, समान वचन दिया है. सिर्फ फर्क ये है कि हम लोग उसमें कितना चलते हैं, वो हम पे निर्भर करता है. ठीक है, तो मैं मेरा तो हम आज हमारे 5वें एनिवर्सरी पे हम जो चर्च के हमारे एल्डर्स हैं उनका आदर करना चाहते हैं, जिनके वजह से हमें डायरेक्शन मिला, दिशा मिली, ताकि हम भटके नहीं, है ना. तो मैं पहले उनको बुलाना चाहूँगा जो यहाँ पे जब आते हैं तो मस्त वचन सिखा के जाते हैं. एकदम हमको कान ऐसे एकदम एक ये करके सुनना पड़ता है, बाबा क्या बोल रहे हैं, कुछ मिस नहीं होना चाहिए. और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वचन होता है उनका, अगर और घर जाके भी सुनना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है. तो हम पहले बुलाना चाहेंगे हमारे प्यारे ब्रदर डेलॉन को. ब्रदर, डू वी हैव फोटोग्राफर? तो डेलन ब्रो हमारे साथ बहुत पहले से है. उनको शायद आपने अभी देखा होगा, लेकिन जैसे बहुत पहले उनके घर पे फेलोशिप होती थी और वहाँ से शुरुआत हुई. तो ये सारी बातें हमको याद है और हमको पता है कि डेलन ब्रो इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर अस. सो थैंक यू डेलन ब्रो. तो उसके बाद आते हैं हमारे दूसरे ब्रदर जो बहुत ज़बरदस्त इवेंजलिस्ट है. उनको हम एक बार उनको किसी ने पास्टर की जगह पेस्टर बुला दिया था लेकिन उनमें पास्टर की सारी क्वालिटीज़ है. उनमें कभी मुझे तो वो पास्टर जैसे लगते हैं क्योंकि वो जो है वो बहुत, उनका दिल अच्छा है, बहुत लोगों को हेल्प करते हैं, बहुत एक सर्विंग, एक सेवा करने वाला हृदय दिया है प्रभु ने उनको. वो भी हमारी फेलोशिप में आए 2016 में और वहाँ से उन्होंने प्रभु को जानना शुरू किया और उसके बाद उनका जो जीवन था वो बदला और उनके द्वारा लोगों का जीवन बदलना शुरू हुआ. तो ऐसे हमारे
बड़े भाई हमारे प्यारे लूकस ब्रदर है, तो उनको मैं बुलाना चाहता हूँ, लेकिन आज वो यहाँ पे नहीं आ पाए, तो उनकी जगह पे ब्रदर मनोज आएंगे और उनका आदर स्वीकारेंगे। ये देना है लूकस ब्रदर को, फोटो नहीं देने सिर्फ। सो यस, लूकस ब्रदर इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। उसके बाद आते हैं हमारे थर्ड एल्डर, जो हमारे चर्च के, मैं कहूँगा एक प्रॉफिटिक वॉइस है हमारे चर्च की। जो जब आते हैं यहाँ पे पूरा स्टेज हिला के रख देते, क्योंकि हम ऐसे बॉम्ब्स डालते हैं ना वो, कि भाई चेयर पे ऐसे शांत बैठ ही नहीं सकता कोई। तो ऐसे हमारे प्यारे प्रॉफिट क्लिफर्ड, ब्रदर क्लिफर्ड हमारे फेलोशिप में आई थिंक 2020 से आ रहे, राइट? 20 से आ रहे, और मैं खुद विटनेस हूँ कि बहुत सारे अड़चने आए इनको फेलोशिप में आने के लिए, लेकिन सारे अड़चनों का सामना करके वो आए, क्योंकि इनको प्रभु ने कहा था कि ये कलीसिया में तुम्हें जाना है, फेलोशिप में जाना है और सीखना है। सो थैंक यू क्लिफर्ड ब्रदर, आपने प्रभु की बात सुनी। यस, थैंक यू सर। एंड देन हमारे फाइनल बट द ग्रेटेस्ट अकॉर्डिंग टू मी, वो लोग जिन्होंने अपना दिल खोला इस फेलोशिप के लिए, अपना घर खोला, अपना पूरा लाइफ हमारे लिए दे दिया कि भाई लोग बढ़ने चाहिए, लोगों को प्रभु के बारे में पता चलना चाहिए, क्योंकि लोग प्रभु के वचन को नहीं जानते और उनका नाश हो रहा है। तो इसके लिए पहले उन्होंने प्रभु को जाना और फिर उनके द्वारा लोगों ने प्रभु को जाना। तो ऐसे हमारे प्यारे पास्टर गणेश और बबीता आंटी दोनों को बुलाना चाहूँगा। सो ये सारे लोग जो आपने यहाँ पे देखे, ये एल्डर्स है जो हमारे चर्च को वचन सिखाते हैं, दिशा देते हैं। इसमें कुछ भी अगर कुछ कभी होता है तो हम इनसे पूछते हैं, इनकी सलाह लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु ने ये जो सेटअप आप देख रहे हो ना, ये आपको बाकी चर्चेस में नहीं दिखेगा मे बी, लेकिन हमने जो भी यहाँ पे सेट किया है वो वचन में देख के ही किया है। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने खुद के मन से किया है। जो एल्डर्स है उनको वो आदर देना चाहिए, जैसा कि हम देख सकते हैं रोमियो का 13वां अध्याय 7वें वचन में लिखा है, जिसको आदर देना है, टू होम ऑनर इज ड्यू गिव ऑनर। और जो वचन में सेवा करते हैं उनको तो डबल ऑनर देना चाहिए। तो इसलिए आज हमने सबको ऑनर किया है, और मैं चाहता हूँ कि हम सब इनको प्यार देते रहे, इनके लिए प्रार्थना करते रहे, है ना। और आगे आई थिंक यस वी हैव समथिंग, so I'll invite my wife to take over. थैंक यू जीसस। सो आप सब ने एंजॉय किया? यस, हालेलुया। आवाज नहीं आ रही? ओ मैं भूल गई, भूख लग रही है, कैसे आवाज निकलेगी? सो बस एक्चुअली हमारे पास बहुत सारी गवाहियां हैं। हाँ, सो हमारे पास एक्चुअली बहुत सारी गवाहियां हैं, बट क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, सो जल्दी से हमने जो गवाही ऑलरेडी है उनको रिक्वेस्ट किया कि 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं प्लीज़। आई नो बहुत डिफ़िकल्ट है ना। सो बट स्टिल हम जल्दी से सिर्फ 2 गवाहियाँ लेंगे, ठीक है, इन शॉर्ट 3 लेंगे, 3 गवाहियाँ लेंगे शॉर्ट में। सो जल्दी से मैं इनवाइट करना चाहती हूँ सतेज ब्रदर को। सो आज हमारे साथ वो बांटने वाले हैं अपनी गवाही एकदम शॉर्ट में।
Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. पहले तो I wanted to thank Jesus for actually saving me. मुझे डेथ बेड से उठा के अब यहाँ पे इस मंच पे खड़ा किया, इसलिए thank you, Jesus. And I wanted to thank all the brethren KOHM के, because जैसे अभी आपने सुना था, अमीश ने बोला था, it's the love, that's the substance that you can find only in KOHM. मुझे भी बाहर बहुत सारा ऐसा नेपोटिज्म एंड बहुत सारे ऐसे वर्ल्डली थिंग्स दिखते थे, बट KOHM में मुझे नहीं दिखा था. सो थैंक यू गाइस, थैंक यू. तो मेरा टेस्टिमनी, आई जस्ट कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. सीन ऐसा था, आई वॉज बॉर्न अगेन. आई वुडंट से बॉर्न अगेन, मेरा बैप्टिज्म हुआ था. बॉर्न अगेन नहीं था मैं, आई वॉज जस्ट सीकिंग गॉड. 2 साल पहले तो आई वॉज गोइंग टू सम ऑफ द चर्च, जो हमारे उधर एक चर्च था, मैं वहाँ पे जाता था. एंड वहाँ पे ऐसा था कि आई यूज्ड टू गेन ऑल द नॉलेज. नाउ अगर मेरे पास सिर्फ नॉलेज हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज यू स्टिल नीड द स्पिरिट ऑफ विजडम, ओके, एंड द स्पिरिट ऑफ रेवोल्यूशन टू अंडरस्टैंड द वर्ड. तो मैंने पूरा बाइबल एक बार पढ़ लिया था बिफोर गेटिंग इनटू KOHM ऑफ कोर्स. तो बाइबल पढ़ लिया. उसके बाद मुझे सेकेंड टाइम जब मैं पढ़ रहा था, सॉरी फर्स्ट टाइम जब मैं पढ़ रहा था, मुझे स्पिरिट बैप्टिज्म भी मिला. तो मैंने दूसरी बार फिर से न्यू टेस्टामेंट फिर से पूरा ख़त्म कर लिया. लेकिन एक जो चीज़ थी जो मुझे हर बार स्टिंग करने की, हर बार प्रीक करने की, वो थी ये कि पीपल यूज्ड टू से कि वचन को तुम्हारे जीवन में कार्य करने दो. तो मैं जितने भी चर्चेस, मतलब वैसे तो 2 ही चर्च में गया, बट वहाँ पे मैं यही ढूंढ रहा था कि ये जो वचन जो आ रहा है उसको मेरे जीवन में मैं ऐसा मैनिफेस्ट कैसे करूँ, वो मेरे जीवन में जीवित कैसे होगा. जैसे यूहन्ना की पत्री में लिखा है 14वें अध्याय में, पहला अध्याय 14वां वचन, कि वचन देहधारी हुआ. तो ऑफ कोर्स हम यही सोचते कि वचन प्रभु यीशु, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था. पर ये प्रभु यीशु के विषय में ही नहीं बात कर रहा है, ये हमारे भी विषय में बात कर रहा है कि वचन हमारे भी जीवन में देहधारी होना चाहिए. तो मैं इसकी खोज में निकल गया था. और बिलीव मी, मैं बहुत सारे जितने भी पुणे में मीटिंग्स होते थे, मैंने मीटिंग्स अटेंड किए, यही सर्च करते हुए, यही खोजते हुए कि ये वचन देहधारी कैसे होता है. ऐसा सेम डिजायर मुझे होली स्पिरिट के लिए आया था. जिस दिन मुझे डिजायर आया मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, उसके दूसरे 2 दिन बाद मुझे होली स्पिरिट का बैप्टिज्म मिला. वैसा ही अभी जब मैं सोच रहा था कि गॉड इज नॉट लिमिटेड, कि मुझे संडे टू संडे चर्च में नहीं आना है, देयर इज समथिंग एल्स जो मैं मिस कर रहा हूं मेरे लाइफ में, कि अगर प्रभु है, प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि यू आर प्रॉस्परस, यू आर होली, यू आर राइचियस, तो मुझे वो कॉन्डेमनेशन वाला फीलिंग क्यों आ रहा है, ऑल दैट वर्ल्डली थिंग्स जो मेरे हार्ट में ऑलरेडी था, परंतु वचन जीवित नहीं था. तो जैसे अभी पास्टर अंकल ने भी बोला और आमिश ने भी बोला, ये सेम थिंग कल रात को मैं सोच रहा था सहभागिता के बारे में, क्योंकि हम सब में एक ही आत्मा है. तो मैं सहभागिता के बारे में सोच रहा था. मेरा जो परमेश्वर के साथ जो सहभागिता था वो तो अच्छा खासा था. आई यूज्ड टू हैव अ फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन विद द लॉर्ड अर्ली इन द मॉर्निंग, 3-4 बजे उठ के. पर फिर भी वो एक जो चीज थी जो मेरे लाइफ में मिसिंग थी, वो मुझे पता नहीं था. एक बार मैं ऐसे ही प्रेयर कर रहा था तो सुनेत्रा सिस्टर का चेहरा मुझे दिखाई दिया. तो मैंने लॉर्ड को पूछा सीन क्या है, तो लॉर्ड ने बोला फोन कर. मैंने बोला ठीक है. मैंने फ़ोन किया सुनेत्रा को, ऑफिस जाके फ़ोन किया. सुनेत्रा ने मुझे एक ही चीज़ बोला, तू यू कम टू माय फेलोशिप. मैंने बोला ठीक है, चलो ये भी ट्राई करते हैं. मैंने बोला लॉर्ड, साम दाम दंड भेद सब ट्राई किया है, अभी यहाँ पे देखते इफ वो जो मुझे जो हंगर है वर्ड का, वो मेरा सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं. चलो यहाँ पे भी ट्राई करते हैं. आई थैंक यू सुनेत्रा फॉर दिस. मैं जब शाम को जब मैं आया था बाइबल स्टडी में, मेरी खोपड़ी फट गई थी. मैं सोच रहा था ये लोग क्या बात कर रहे हैं, ये मतलब मैं मतलब बाइबल में ही लिखा है, मैंने 2 बार पढ़ भी लिया है, बट ये दिखाई क्यों नहीं दिया मुझे. तो मैं सिर्फ पढ़ रहा था नॉलेज गेन करने के लिए. लेकिन यहाँ पे ये जो भाई बहन लोग जो है वो नॉलेज तो गेन कर रहे हैं, परंतु वो जो बुद्धि और ज्ञान जो समझ है ना, वो समझ भी शेयर कर रहे हैं. वो जो भी इनको परमेश्वर से प्राप्त हो रहा है प्रतिदिन, वो उसको शेयर करते जा रहे हैं.
मैंने बोला यार ये लोग अलग है। मैं घर पे आके एक्साइटिंगली मेरे वाइफ को बोल रहा था कि अरे उधर कुछ अलग चल रहा है बाबा, उधर बहुत मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा उधर। मेरे पास 2-3 ही क्वेश्चंस थे, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस को तो आंसर्स दे दिया उन्होंने, लेकिन और इधर 100-200 क्वेश्चंस और आ गए। अभी क्या करूं मैं? तो मेरे वाइफ ने मुझे बोला ठीक है, इफ यू फील दैट इज गुड गो देयर। मैंने बोला ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी आता था, जैसे अमीश ब्रो ने बोला संडे टू संडे आता था। अभी मैं क्या करने लग गया, मैं कंपैरिजन करने लग गया कि मैं बाहर जहां पे वचन सुनता हूं और यहाँ पे जो वचन सुनता हूं उसमें अंतर क्या है। अभी मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो अच्छा बता, वो गलत बताते, ये अच्छा बताते। सर हर जगह पे वचन सेम ही है, हर जगह पे अनॉइंटिंग हर एक इंसान का अलग अलग होता है, जिसका जो कॉलिंग वही हिसाब से वो डिलीवर करता है। यहाँ पे जब मैं आया, एक चीज मुझे जो पता चली वो थी डिसाइपलशिप। और ये जो डिसाइपलशिप जो थी, आपको पता है प्रभु यीशु के साथ 12 शिष्यों में से सिर्फ 3 शिष्य थे जो हमेशा प्रभु के संग रहते थे, पीटर, जेम्स एंड जॉन। ये तीनों ही थे जिन्होंने माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में लॉर्ड को ट्रांसफिगर होते हुए देखा था, पूरे ग्लोरी में लॉर्ड को देखा था। मैंने बोला 12 शिष्यों में से मुझे 12 शिष्य तो बनना ही है, बट उसमें से ये 3 में से भी एक बनना है। सो ये जो डिजायर जो मेरे मन में आया, उससे जब मुझे होली स्पिरिट ने प्योर कंफर्मेशन जो वैलिडेशन दिया, उस वैलिडेशन को लेके मैं उस दिन संडे को एकदम बोल्डली आया यहाँ पे कि मैं बोला नहीं, मेरे को इधर ही रहने का है। सो आई सेड मैं इधर ही रहूंगा और मैं यहीं से, मेरा जो भूख है, मेरी जो प्यास है वो यहाँ पे ही मिटाई जा रही है। और ये चीज मैंने खुद डिसाइड नहीं की थी, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने बताया था। अभी अमीश ब्रो ने बोला ना कि हम लोगों ने ये चर्च एस्टैब्लिश करना ये हिसाब से नहीं इसको स्टार्ट किया था, ये सिर्फ एक फेलोशिप था। बट लॉर्ड ने जैसे जैसे स्लो स्टेडीली जैसे प्लान्स डालते गया, सेम वे लॉर्ड ने मेरे भी हार्ट में वो प्लान डाला। 6 मंथ्स तक मैं 50-50 था, आऊ नहीं आऊ संडे टू संडे। बट जिस दिन मुझे वैलिडेशन मिला, जिस दिन लॉर्ड ने मुझे कुछ चीजें रिवील किया, उस दिन मैं डिसाइड किया लॉर्ड आई वांटेड टू बी योर डिसाइपल एंड आई विल बी अ पार्ट ऑफ दिस फेलोशिप। तो तभी से लेके अभी तक ऐसा एक भी दिन नहीं है मेरे लाइफ में कि मेरे लाइफ में कोई टेस्टिमनी नहीं है। आई वोंट से टेस्टिमनीज छोटे होते हैं बड़े होते हैं, नहीं, मेरे लिए सब टेस्टिमनी समान है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक के जीवन में कार्य किया है, मेरे जीवन में रोज कार्य करता है। और रोज मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन जीवित होते हुए मैंने देखा है। रोज जीवित वचन जीवित होने के लिए पहले तो तुम्हारा जो सहभागिता है परमेश्वर के साथ, दैट इज इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि हम इस संसार में रह रहे हैं, द फेलोशिप विथ द होली ब्रेथरन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो मुझे फेलोशिप विद द होली स्पिरिट, फेलोशिप विद द लॉर्ड मिल रहा था, लेकिन जो सांसारिक जीवन में जो फेलोशिप चाहिए था वो नहीं मिला था, वो मुझे इधर मिला। एंड आई बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। सो I'm like I wanted to tell you guys, मैं यहाँ पे ऐसा नहीं मतलब KOHM को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि इट वॉज माई हार्ट्स डिजायर कि मुझे लॉर्ड चाहिए। मुझे होली स्पिरिट जब चाहिए था, लॉर्ड ने मुझे दूसरे तीसरे दिन ही होली स्पिरिट का बैप्टिज्म दिया। जब मैंने बोला लॉर्ड मुझे डिसाइपल बनना है तेरा, तब लॉर्ड ने मुझे हर जगह घुमा के, जब मैं खुद के बल से, खुद के सामर्थ्य से हर जगह पे घूम के आया, फिर लॉर्ड ने बोला हो गया ना तेरा, अब इधर जा। जब मैं यहां पे आया तब, गाइज आई एम टेलिंग यू, इन एवरी सेक्टर ऑफ माई लाइफ, be it health, be it wealth, be it career, business, anything, be it family, every sector of my life I'm prosperous and God is taking me from glory to glory. I only have one word, He is taking me from glory to glory. महिमा से महिमा में। हर एक बार मुझे नहीं पता मैं इस स्टेज में आके ट्रांसलेशन कब करने लग गया। I didn't know anything. एक दिन बस मेरे ऑफिस में, मेरे जो ऑफिस का सीईओ है उसने मुझे बोला कि तुझे इंटरव्यू लेना है लोगों का। सीईओ ये बात बोल रहा है, बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज सीईओ नोज यू। उसी दिन शाम को आलिशा सिस ने मुझे बोला ब्रो यू विल हैव टू ट्रांसलेट। मैंने बोला लॉर्ड इतनी खुशी ये मैं कैसे सहूंगा, इतना सब नहीं सह सकता मैं। तो डू यू गाइज अंडरस्टैंड, जैसे जेरेमिया 29:11 में लॉर्ड ने लिखा है, द प्लान्स दैट आई हैव फॉर यू आर ऑफ गुड एंड नॉट ऑफ इविल। व्हेन यू वेट, जब आप वेट करते हो वो आपको मांगने से भी ज्यादा देता है। अभी मेरा प्याला तो उमड़ रहा है, मेरा प्याला उमड़ रहा है,
आप देख रहे हो क्या? मैं वचन में ही बोल रहा हूं, बिकॉज दिस वर्ड इज अलाइव इन मी, अलाइव इन माई लाइफ. मेरा प्याला उमड़ रहा है. आई एम कॉन्टेंट. और मुझे मांगने से भी प्रभु सब बहुत ज्यादा दे रहा है कि मुझे समेटने भी नहीं आ रहा कि लॉर्ड इसको कैसे संभालूं मैं. तो ये सब इसी कारण हुआ जब मैं फेलोशिप में आया, द राइट फेलोशिप विद द लॉर्ड एंड द राइट फेलोशिप विद द होली ब्रेथरन. तो ये सब पॉसिबल तभी हो पाया जब होली स्पिरिट अपने साथ था. ऑफ कोर्स इट वाज लॉर्ड, इट वाज द प्लान ऑफ लॉर्ड कि तुझे यहां पे जाना है. एंड लाइक आई सेड, ग्लोरी टू ग्लोरी. थैंक यू. Praise the Lord, everyone. I'm a bit nervous. So, all glory to Jesus. मेरी छोटी सी टेस्टिमनी है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी. सो स्टार्टिंग फ्रॉम कोविड में मतलब अमीश की मॉम आंटी ने मम्मी को बोला था ऑनलाइन फेलोशिप ज्वाइन करने. तभी ऑनलाइन होता था कोविड के टाइम. तो मम्मी ज्वाइन करती थी बट मैं नहीं करती थी. मम्मी ने मुझे बहुत बार इंसिस्ट किया था कि कर ज्वाइन, मुझे और मेरी दीदी को. तो मैं नहीं करती थी. मैंने सोचा ऑनलाइन क्या ही करेंगे, ऐसा था. ऑनलाइन मतलब क्या ही सुनेंगे, ऐसा था. तो मतलब स्टार्टिंग से ऐसा था कि संडे टू संडे चर्च. सो मतलब स्टार्टिंग से ही बिलीवर थे बट एवरी संडे टू संडे चर्च जाना है वही इम्पॉर्टेंट था पहले. सो उसके बाद आफ्टर कोविड मतलब ऑफलाइन फेलोशिप स्टार्ट हुआ था. तो आंटी ने बोला था कि एक बार आओ तुम पिंपले गुरु में पास्टर के घर पे. तो फिर मम्मी हमको लेके गई. हमने सोचा दीदी और मैंने कि अभी कहाँ लेके जा रहे हैं. मम्मी बोली बस तुमको जाके बैठना है उधर, कुछ बोलना नहीं है, चर्च नहीं है, बस सुनना है तुमको, ऐसा. तो फिर हम लोग गए और फिर फर्स्ट टाइम गए. उसके बाद तभी कुछ समझा नहीं. स्टार्टिंग में फर्स्ट दिन हम सोच रहे थे क्या बोल रहे हैं ये लोग. बाइबल स्टडी में मतलब बाइबल स्टडी होता था, फेलोशिप होता था, तब कुछ समझ में नहीं आता था. तो थोड़े दिन मतलब कभी कभी जाती थी, कभी कभी नहीं. तो सैटरडे को इधर अल्पाइन होटल में चर्च स्टार्ट किया. सैटरडे इवनिंग को रहता था. तो फिर तभी आई यूज टू कम अलोन दैट टाइम. फिर मम्मी भी आती थी कभी कभी. फिर रेगुलरली फिर मैंने फेलोशिप स्टार्ट किया, सैटरडे आना एवरी टाइम. और फिर ऐसा पता चला मतलब नहीं क्या संडे टू संडे जाते थे, उसके बाद सब दिमाग से जाता था. बट सैटरडे व्हेन आई स्टार्टेड फेलोशिप तो फिर ना रिन्यूइंग ऑफ माइंड वो बहुत कम होता है. एवरी डे मतलब रिन्यूइंग माइंड होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो पता चला. संडे टू संडे सुन के आते हैं चर्च, उस दिन ही मतलब मंडे तक रहता है मोस्टली, तो ट्यूसडे तक रहेगा मतलब वो वर्स है ना. तो फिर एवरी वीक एवरी डे मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून एवरी डे वो बस दिमाग में घूमते रहना, तो वो होता नहीं है मोस्टली. तो फेलोशिप में सुनते सुनते बस पहले मैं सुनने की मतलब अभी भी सुनती हूँ मतलब पहले सुनने की. तो सुनते सुनते ना कब मतलब ऐसा माइंड चेंज हो गया ना रिन्यू, कि मतलब पहले समझ में नहीं आता था, अब समझ में आते हैं वर्सेस, कि अभी समझ में, अभी क्वेश्चंस भी आते हैं. पहले कंफ्यूजन होता था हर एक चीज़ में. और फिर और एक बेटर चीज़ है मतलब वेरी गुड चीज़ है कि फाइनेंस के बारे में है, जो चर्चेस में मोस्टली तुमको सुनने में नहीं आता है फाइनेंस के बारे में. तो फाइनेंस के बारे में मतलब एरिया में मतलब इतना प्रॉस्पेरिटी हुआ है जब से मतलब फाइनेंस के बारे में सीखा है थ्रू वर्ड. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली यूथ को मतलब ऐसा होता है कभी कभी क्यों जाए ऐसा, बस संडे टू संडे जाए. तो आई वुड एनकरेज एवरी वन ऑफ यू एंड स्पेशली यूथ टू जॉइन अस इन द फेलोशिप, मोस्टली इन फेलोशिप, so that you will also renew your mind. Thank you. Yes, so again same message, please join our fellowship, it's very important. And ये दो लोग को हमने नहीं बोला था कि बाबा तुमको देना चाहिए, बट हमने सजेस्ट किया था, बट दे सेड हाँ हम शेयर करेंगे.
और ये उन्होंने दिल से बोला है, जो भी उन्होंने चेंजेस देखे हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ आ सकते हैं फेलोशिप। हाँ, और मेरा एक गवाही मैं बीच में डाल रहा हूँ, छोटा सा। छोटा इसलिए मतलब दो गवाही है। पहला तो ये है कि आई हैव बीन प्रमोटेड इन दिस साइकिल। सो सारा आदर मैं प्रभु को देता हूँ, मुझे प्रमोशन मिला है। और गवाही मेन ये है कि जब प्रमोशन हुआ तो मैनेजर के साथ मीटिंग होता है, तो वो डिस्कशन होता है कि अभी आपका सैलरी इतना होगा, ये होगा, वो होगा, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। वो मीटिंग में मेरे मैनेजर ने एक चीज़ बोली जो मेरे लिए वो गवाही है। वॉट ही सेड इज़, अमीश, मैं बाकी लोगों से बात करता हूँ अबाउट लाइक जनरल जब मीटिंग होता है, व्हेन आई टॉक टू देम, बहुत लोग, एवरी वन ऑफ देम हैव इश्यूज इन देयर मैरिज, इन देयर फैमिली। बहुत लोग बोलते हैं कि घर पे प्रॉब्लम है, वाइफ ऐसा करती है, वैसा करती है। माई मैनेजर इज सेइंग कि अलीशा इज़ अ वेरी गुड लाइफ पार्टनर फॉर यू, एंड ही इज सेइंग कि वाई, बिकॉज ही इज सेइंग मैंने सबको सुना है, सबके मैरिज में प्रॉब्लम होता है, आई नेवर सीन यू टॉकिंग अबाउट इट और यू नो डिस्टर्ब्ड, क्योंकि वो बताता है कि तुम्हारे घर में एटमॉस्फेयर कैसा है, तुम्हारे घर में जो फैमिली बनाया है तुमने, यू हैव मेड इट एंड यू आर वेरी ब्लेस्ड। एंड ही सेड कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ अ स्पिरिचुअल थिंग, ही सेड। सो उनको दिखता है कि हमारे जीवन से कि हमारा मतलब हमारे ऊपर प्रभु का हाथ है, हमारे परिवार के ऊपर प्रभु का हाथ है ना। तो मेरे लिए वो गवाही था। प्रमोशन तो आता है लॉर्ड से, आ गया, मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। तो सारा आदर महिमा को प्रभु को देंगे, और खाने के बाद स्वीट खा के जाइए प्लीज़। थैंक यू। हाँ, आई वुड लाइक टू कॉल पास्टर टू। सुनित्रा का बर्थडे है, आ जाओ सुनित्रा। हम सब खड़े हो जाएंगे, आखिरी गीत गाएंगे ना। हम सब अपना हाथ उठाएंगे सुनित्रा की तरफ और हम सब उसको ब्लेस करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम बहुत धन्यवाद करते प्रभु आपकी महान उपस्थिति के लिए। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे बीच में उपस्थित हो प्रभु। आपकी उपस्थिति में प्रभु सुनित्रा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता। सुनित्रा को आपने प्रभु ये दुनिया को बनाने से पहले चुना है प्रभु, और वो आपकी चुनी हुई बेटी है प्रभु, आपका पात्र है। और उसके जीवन में जो काम आपने शुरू किया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपके द्वारा प्रभु उसके जीवन में जो काम हो रहा है, अनेक लोग देख रहे प्रभु, वो दुनिया के छोर छोर तक प्रभु आपका गवाह बन रही है पिता। उसके घर से गवाही स्टार्ट हो रही है प्रभु, और प्रभु सब जगह वो गवाही फैल रही है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। उसका जीवन को प्रभु आपने आशीर्वादित किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपके ज्ञान और पहचान में आप उसके जीवन में उन्नति ला रहे हो प्रभु। प्रभु उसको एक अच्छा बेटा दिया है, अच्छा पति दिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। ये दोनों पति पत्नी के लिए धन्यवाद प्रभु। इनके द्वारा प्रभु आपका कलसिया बढ़ रहा है प्रभु, और ये एक आदर्श बन रहे हैं प्रभु पति पत्नी, और इनके द्वारा प्रभु आपका नाम का महिमा हो रहा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम पूरी कलसिया मिलकर प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी सुनित्रा को आशीर्वादित करते प्रभु, और जो भी आपकी योजना उसके जीवन में है, जो भी उद्देश्य है प्रभु, वो सब उसके जीवन में पूरी होने पाए पिता। हर एक आशीषों को यीशु के नाम से रिलीज करते हैं प्रभु उसके जीवन में। वो कभी बीमार नहीं पड़ेगी प्रभु, दैविक आरोग्य में वो चलेगी प्रभु, और प्रभु तेरे सामर्थ में प्रभु तेरे प्रकाशन में अपना जीवन को जिएगी पिता। उसका जीवन एक आशीर्वादित जीवन होगा। हालेलुया। एक प्रभु जी वो गुणवत्ती स्त्री बनेगी प्रभु। हालेलुया। शी विल बी अ वर्चुअस वुमन in the name of Jesus. Thank you Father, we bless her in the mighty name of Jesus. Thank you Lord that you have blessed her Lord, in Jesus name, amen. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Sunitra, happy birthday to you. God has blessed you, God has blessed you. Happy birthday dear Sunitra, happy birthday to you. Woo, 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 woo. आखिरी गीत गाएंगे।
थैंक यू जी। Thank you, Jesus. एक आखिरी गाना गाएंगे। I know food is there, stomach is here. So मुझे पता है सबको भूख तो लगी है, but I want बोलते हैं ना खाना खाने से पहले एक इनॉग्रेशन होना चाहिए. So can everybody clap for me? जोर से यार, come on, that is not. ओ टाळी कोणाची देव बापाची, टाळी कोणाची देव बापाची, करीलत होळी सर्व पापाची, करीलत होळी सर्व पापाची. टाळी द्या ओ टाळी, द्या ओ टाळी, टाळी द्या ओ टाळी, द्या ओ टाळी, टाळी द्या ओ टाळी, द्या ओ टाळी, टाळी द्या ओ टाळी, द्या ओ टाळी. टाळी कोणाची देव बापाची, टाळी कोणाची देव बापाची, करीलत होळी सर्व पापाची, करीलत होळी सर्व पापाची. टाळी द्या ओ टाळी, द्या ओ टाळी, द्या ओ टाळी, द्या ओ टाळी. टाळी कोणाची देवपुत्राची, टाळी कोणाची देवपुत्राची, करीलत होळी सर्व पापाची, करीलत होळी सर्व पापाची. ओ टाळी कोणाची देवपुत्राची, ओ टाळी कोणाची देवपुत्राची, करीलत होळी सर्व पापाची, करीलत होळी सर्व पापाची. ओ टाळी द्या ओ टाळी, द्या ओ टाळी, टाळी द्या ओ टाळी, द्या ओ टाळी, टाळी द्या ओ टाळी, द्या ओ टाळी, टाळी द्या ओ टाळी, द्या ओ टाळी. ओ टाळी कोणाची पवित्र आत्माची, टाळी कोणाची पवित्र आत्माची, ओ करीलत होळी सर्व पापाची, ओ करीलत होळी सर्व पापाची. ओ टाळी कोणाची पवित्र आत्म्याची, ओ टाळी कोणाची पवित्र आत्माची, करीलत होळी सर्व पापाची, करीलत होळी सर्व पापाची. ओ टाळी द्या ओ टाळी, द्या ओ टाळी, टाळी द्या ओ टाळी, द्या ओ टाळी. ओ टाळी द्या ओ टाळी, द्या ओ टाळी, टाळी द्या ओ टाळी, द्या ओ टाळी. टाळी कोणाची पवित्र आत्माची, टाळी कोणाची पवित्र आत्माची, ओ टाळी कोणाची देवपुत्राची, ओ टाळी कोणाची देवपुत्राची, ओ टाळी कोणाची देव बापाची, ओ टाळी कोणाची देव बापाची. ओ टाळी द्या ओ टाळी, द्या ओ टाळी, टाळी द्या ओ टाळी, द्या ओ टाळी. ओ टाळी द्या ओ टाळी, द्या ओ टाळी, टाळी द्या ओ टाळी, द्या ओ टाळी. ओ टाळी द्या ओ टाळी, द्या ओ टाळी, टाळी द्या ओ टाळी, द्या ओ टाळी. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा। और पूरी कलीसिया कहेगी एक दूसरे से सहभागिता कीजिए, प्रीति भोजन किए बगैर कोई नहीं जाएगा।